So you've built a business that's valued at 3,000 crores. You're doing 450 crores in revenue. I want to start with the most important question that the audience cares. How can they make money through EV? तो EV में आफ्टर सेल्स इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. For example? बहुत सारे OEMs की बाइक गेट स्टक बिकॉज देयर इज नो मैकेनिक. In fact, recently Ola has suffered some issues. Now Ola said out कि now we want to outsource also. So there is opportunity to basically create mechanic workshops. Let's say I gave you a lakh tomorrow. What would you do with it in the EV or renewable space? लाख में तो कुछ नहीं होगा. Because when you are entering into a disruptive field which is not being solved by anyone, you'll have to create a category. And category creation takes some capital. What are your top 3 ideas where someone who has access to capital should go and build? I had a life-changing moment where I realized that hey, I want to be a कैसे? Someone told me to write my dreams. So dreams लिखने बैठा तो लिखा कि यार entrepreneur first dream. A lot of people talk about visualization, but I haven't done Good it. work. So who was the first big customer that you signed? Big Basket and Amazon. आपके माइंड में ये थॉट आता है कि कल को दीपेंद्र गोयल wakes up and says कि यार हम क्यों दे रहे हैं 50-60 डिलीवरी, हम खुद ही कर लेते हैं पूरा काम. तो बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई किया कि हम भी जिप बन जाते हैं. वो आते थे, बट क्या होता है साल भर बाद वो बंद हो जाते हैं. नाउ वी डबल क्लिक ऑन इट कि हो क्या रहा है. तो हमें ये समझ में आया कि ऐसा होता है कि कोई बाइक लेके गायब हो जाता है या आकाश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मैं जनरली बोलता हूँ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बट नाउ आई एम सेइंग हैविंग मी. वेलकम टू द जिप ऑफिस टू डू दिस मैन. आई अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. टाइम हमारा थोड़ा ऐसा ही रहता है. No, totally get that. So you've built a business that's valued at 3,000 crores. You're doing 450 crores in revenue, right? For the audience, जितने भी हमारे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो के ऑर्डर आते हैं वो जिप की वजह से ही आ रहे हैं, राइट? अदरवाइज वो सामान हमारे तक नहीं पहुंचता. सो लेट्स टेक 30 seconds or a minute. Tell them what Zip does. Right, I know what Zip does, but you can quickly tell them that you provide last mile delivery services to all these companies, and then we'll start. Sure, yeah. So Zip basically क्या करता है, and I'll correct a few things. Maybe even your understanding will evolve a bit in this discussion. So Zip essentially is a EV tech platform. Right. What we have done over the last 8 years is that we've solved that how to make EV available for masses. And what we've picked up is the biggest growing opportunity, which is quick commerce and food delivery. Correct. Right? So all of these areas are growing quite rapidly. So basically क्या करते हैं कि quick commerce, e-commerce grow कर रहा है rapidly. Right? अब अगर इनकी जो सप्लाई है, जो लोग आपके पास डिलीवरी करने आते हैं, अगर उन लोगों की आप प्रोफाइल समझो तो वो गांव से आते हैं, राइट? शहरों में आते हैं. क्यों आते हैं? करीब 1,000-1,500 रुपये पर डे कमाने. राइट? अब क्या होता है, ये जो काम है डिलीवरी का, ये आसान नहीं है क्योंकि 10-12 घंटे बाइक चलानी है. राइट? अब एक इंसान जो नॉर्मल है वो साल भर चलाता है इन हिज लाइफ, 12 महीने के लिए चलाएगा, डिलीवरी करेगा. कुछ लोग 5-6%, 10%, 3 साल भी चला लेंगे, बट ओवरऑल एवरेज 12 महीने चलाता है. एक साल में चर्न आ जाता है. वो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर रहा होता है लाइफ में. इट्स अ गिग रोल. इट्स अ गिग. गिग मतलब मेरे पास फिक्स जॉब नहीं है, बट मैं कुछ ना कुछ कमा लूंगा और सीख भी लूंगा, शहरों में आ जाऊंगा, कुछ ना कुछ सेटअप बना लूंगा. तो मैं पढ़ाई भी कर रहा होता हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहा होता है वो. गाँव में कुछ खेती बाड़ी की भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो 2-3 महीने साल में जाता भी है गाँव. इंटरेस्टिंग. कोई बीमार होता है फिर जाना पड़ता है, खुद भी बीमार होता है. तो इस तरह से वो साल में भी 8-9 महीने ही काम करता है. एक साल का मुद्दा बना के आता है, 8-9 महीने, फिर ब्रेक लेता है, फिर शायद फिर से कर ले 6 महीने. सो व्हेन दिस गाय कम्स, so a lot of people churn out also because of the same reason. Correct. It's not a permanent job. तो बहुत लोग जाते भी हैं, बहुत लोग नए आते भी हैं. अब जो नए आते हैं वो यंग होते हैं, जो फिगर आउट कर लेता है लाइफ, जो कहीं ना कहीं अपनी जॉब एस्टैब्लिश कर लेता है या कोई दुकान ढूंढ लेता है, नौकरी ढूंढ लेता है, वो चला जाता है, स्टेबल हो गया. जो नॉन स्टेबल है वो आते रहते हैं. अब जब नॉन स्टेबल बंदा आता है ये काम करने, उसको 1 लाख रुपए की बाइक खरीदनी होती है या फिर सेकेंड हैंड खरीदेगा, तो कॉस्ट ज़्यादा क्यों आएगी? क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी. सबके सब पेट्रोल बाइक्स चलाते हैं, राइट? तो जब ये पेट्रोल बाइक्स चलाते हैं तो ये कमाते तो 30,000-35,000 रुपये हैं, पर इनका खर्चा 10-11 हज़ार होता है. करेक्ट. फ्यूल एक्सपेंस फिक्स्ड मैथ है, मैं मैथ्स बता दूंगा आपको. तो 11,000 का खर्चा आता है. अगर ये बंदा ईवी पे मूव कर जाता है तो इसका खर्चा 6,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, फ्यूल कॉस्ट बहुत कम, राइट? तो ही स्टार्ट सेविंग 5,000 एक्स्ट्रा. नाउ व्हाट जिप डज, कमिंग टू योर आंसर, जिप क्या करता है? जिप एक तो ईवी लेके आता है, टॉप क्लास क्वालिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज वी हैव डेटा इंजन. हमने पूरा डेटा इंजन बना रखा है कि व्हीकल कैसे चलता है, क्या खराब होता है,
क्या स्पेयर पार्ट चाहिए, कैसे मेंटेनेंस होगी, किस तरह की बैटरी, किस तरह का मोटर, क्या इंडिया को चाहिए, वो व्हीकल हम बढ़िया बनवाते जा रहे हैं। अब वो व्हीकल जब हम देते हैं इस डिलीवरी पार्टनर को, हम बोलते हैं यार 20,000 का डाउन पेमेंट मत दो, जो कि एक बाइक खरीदनी पड़ती 20,000 का डाउन पेमेंट, बैंक लोन नहीं मिलेगा इनको क्योंकि फर्स्ट टाइम अर्नर है, क्रेडिट ही नहीं कोई है। बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर बैंक लोन भी नहीं देता इनको। हम कहते हैं बैंक लोन नहीं चाहिए तुम्हें, डाउन पेमेंट नहीं है तुम्हारे पास, यू कम टू अस, यू गिव अस अ डेली रेंट। तो ऐप पे आओ, टेक इनेबल्ड 250 रुपये पर डे रेंट दो हमें, आपको स्कूटर हम अच्छा खासा दे देंगे। अब प्रॉब्लम ये है, मान लो उसने खुद का स्कूटर खरीद भी लिया होता, जब ये स्कूटर खराब होता है तो एक हफ्ता तक कोई नहीं पूछता इसको, सही बात। वर्कशॉप के धक्के खाता है, स्पेयर पार्ट नहीं होता तो बोलते हैं 5 दिन बाद आना। इसकी तो रोजी रोटी रुक गई, ये तो आया ही कुछ समय के लिए था, इसको कमाने हर दिन। हमने क्या किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बना दी बैकएंड में, जब भी तुम रुकोगे हमारे पास स्पेयर पार्ट भी है, मैकेनिक भी है, हम वहाँ आके ठीक कर देंगे जहाँ पे तुम्हें चाहिए। बाइक खराब होगी, नई बाइक दे देंगे। तो हम इसको अप टाइम देते हैं। ठीक है। व्हाट वी ऑफर हिम इज अनस्टॉपेबल अप टाइम, कि बस अगर तेको मेहनत करनी है ना, हम तेको एक ऐसी बाइक दे रहे हैं जो रुकेगी नहीं, जो कि जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगी, यू गो टू अ स्वैप स्टेशन, यू गेट अ हॉट स्वैप इन 30 सेकेंड्स। तो आपको 200 किलोमीटर चलाना है, चलाओ, कमाओ। तो हम इसको अप टाइम के साथ एक स्कूटर का फिनेंसिंग या फिर रेंटल प्लान दे देते हैं, और इसको 1,000 से 1,500 रुपए दिन के कमाने का मौका देते हैं। ओके, बट जोमैटो पे जाके हायर होना इसका काम है। यस। अब जोमैटो, अब इसके पास 2 ऑप्शन है। ये डिलीवरी पार्टनर अगेन गांव से आया है, इसको नहीं पता कहाँ कमाई है, तो हम इसको अपने प्लेटफॉर्म पे 2 ऑप्शन देते हैं। अगर आपने फिगर आउट कर लिया लाइफ में, तो आप कहीं भी काम करो, यू डोंट हैव टू अटैच, जस्ट पे द रेंट। जस्ट पे, you know, maybe 250 260 a day, and you run the show, right? But keep my wallet, which is his rental, recharge for 7 more days, हमेशा रखना अपने पास, तभी हम बाइक देंगे आप। ठीक है। तो वो रिचार्ज करके अपनी जिंदगी में कमाता रहता है। जिस दिन उससे लगता है मुझे नहीं कमाना, मुझे छोड़ना है, वो छोड़ के चला जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो ऑफर्ड एज पार्ट ऑफ द प्लान, राइट? या फिर हम बोलते हैं आपको नहीं पता, आपको फिगर आउट ही नहीं करना आपको कि कहाँ काम करना है, वी हैव एवरी अपॉर्चुनिटी लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म। When you connect via us, so let's say you've connected via the Zip platform to a Zomato, then we will pass on the payout to you. That's the only thing, right? He is doing whatever he wants to. He's selecting the platform also on the Zip. But the opportunity is that, hey, now we'll handle so that you get paid also on time. So हम हर हफ्ते इसका पे आउट प्रॉपरली इसको दिखाते हैं ऐप पे, देखो आपने 1,000 रुपये का काम किया, आपका इतना रेंट कटा, आपने इतना स्पेयर पार्ट लगाया, ये आपका दिन की कमाई हो गई। सो वी बेसिकली देन मैनेज हिज एंटायर कैश फ्लो एंड लाइफस्टाइल। सो यू हैव बोथ, कि या तो हमसे रेंटल पे ले लो, करेक्ट, या जोमैटो से आप प्लग्ड इन हो, करेक्ट, एंड हमारे से इंटीग्रेट कर लो। दैट्स राइट। तो अगर 100 जिप बाइक्स हैं वर्ल्ड में, कितने ऐसे बाइक्स हैं जो लोग खुद से बस रेंट करके खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और कितने अपॉर्चुनिटी वाले हैं? हाँ, तो अबाउट 75-80% लोग जिप के थ्रू काम करते हैं, which they makes like sense. that. Yeah, they like that. They get some discounts also on the rental if they do that, right, to achieve certain KPIs. The other 20% they do on their own. Got it. But for us, the cream is that it is a rental platform to offer to 1 million people. तो आज की डेट में 10 लाख से 12 लाख लोग हैं जो कि टॉप सिटीज़ में इंडिया की, वैसे तो 20 लाख लोग हैं, बट मैं टॉप 25-30 सिटीज़ की बात करूँ तो करीब 12 से 15 लाख लोग ये काम कर रहे हैं। सब पेट्रोल बाइक चला रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की क्या इन सारे पेट्रोल वाले बंदों को मैं ईवी पे मूव करके 5,000 बचाने का और फ्लेक्सिबिलिटी का ऑफर दे दूं विद अ हाई अप टाइम। So 15 lakh delivery gig workers in the economy today. Yes. How many on Zip? So Zip is just 20,000. Oh, so there's a huge opportunity left. Wow. So now when you talk about 20,000, it is just less than 2%. Yeah. That's the market share that we are on today. But everything else is petrol. There are a very few other operators. So अगर EV का market 100 है आज, तो we are about 60-70%. Which means अगर हम 2% पे हैं, तो बाकी सब फ्यूल है, राइट? सो नाउ द अपॉर्चुनिटी, बट द सेम परसेंटेज इन दिल्ली इज अबाउट 12%. दिल्ली में जितनी भी डिलीवरी होती है इंक्लूडिंग फ्यूल ऑल टाइप्स, 12 से 13% जिप कर रहा है। तो क्या मैं ये टॉप 30 सिटीज में कर सकता हूँ और उनको ये ऑप्शन दे सकता हूँ ईवी पे मूव करने का, इज द रोड मैप। गॉट इट। सो आई वांट टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट द ऑडियंस केयर्स अबाउट, राइट? हाउ कैन दे मेक मनी थ्रू ईवी? लेट्स स्टार्ट देयर। अगर उनको आज एक ईवी बिजनेस शुरू करना है, आई एम एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, आई डोंट हैव एनी कैपिटल, करेक्ट, वेयर डू दे गो, व्हाट डू दे डू?
सो देयर आर 2-3 ऑप्शंस एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए। हम एक चीज़ बोलेंगे कि वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड अ न्यू थिंग, राइट? क्योंकि क्या है, हमने देखा कि डिमांड तो बहुत है। अगेन मार्केट इज कितना, 15 लाख, राइट? मैं 1-2 लाख डालूंगा एज जिप, बट 15 लाख को अपॉर्चुनिटी देनी है, एंड हेंस द मार्केट इज बिग। नाउ पीपल बेसिकली वांट टू डू दैट, कि हम भी कर सकते हैं ना, हम भी जिप बन सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई किया कि हम भी जिप बन जाते हैं। तो किसी ने ऑरेंज बाइक लगाई, किसी ने पर्पल बाइक लगाई, किसी ने पिंक बाइक लगाई, राइट? अलग अलग ब्रांड नेम के साथ वो आते थे। बट क्या होता है, साल भर बाद वो बंद हो जाते हैं, 1.5 साल बाद वो बंद हो जाते हैं। नाउ वी डबल क्लिक्ड ऑन इट कि हो क्या रहा है, राइट? तो हमें ये समझ में आया कि पीपल, इट्स अ वेरी एनालॉजी दैट आई वांट टू शेयर राइट नाउ। इट्स अ इंटरेस्टिंग एनालॉजी। हमारा बिजनेस एकदम स्विमिंग की तरह है, स्विमिंग इन द ओशन। अट्रैक्टिव लगता है, लोगों को लगता है यार कितना मज़ा आएगा समुंदर में, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। It's very enticing for everyone. I would also love to do. But when you go into the ocean, that's when you figure out, hey, the waves are coming at me. I don't know how to flap my hands. Yeah. I don't know how to do the legs. I don't even know how to float. Which is what very clear to our business also. लोगों को बड़ा enticing लगता है। 500 बाइक खरीद लेते हैं, राइट? लाख रुपए का खर्चा है, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया, राइट? 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया, जो कि आसानी से किसी से भी मिल जाता है। तो 500 बाइक का धंधा तो लोग शुरू कर लेते हैं, बट उन्होंने ना टैक्स सोचा, ना क्वालिटी ऑफ बाइक देखी, ना आफ्टर सेल्स देखा, ना मैकेनिक सोचा, जो बाइक में डल रहा है वो भी नहीं पता इनको, ना जीपीएस लगाया, ना ट्रैकिंग करी, डिलीवरी पार्टनर को ऐसे ही दे दिया गूगल शीट पे, तो टेक ही नहीं बनाया, कोई विजिबिलिटी नहीं है उनके पास। सो क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, और स्टार्टिंग में ना कुछ नहीं, सब अच्छा लगता है। इवन व्हेन यू ओपन समथिंग, मज़ा आता है इनिशियली, राइट? तो चलो लोग ले जाएंगे, डिमांड इतनी है कि लोग ले जाते हैं बाइक, बट वो बाइक आती नहीं है, कैसे आती है, कैसे मैनेज करना है, वहाँ पे लोग और पीएनएल देखता नहीं कोई। स्टार्टिंग में कोई पीएनएल नहीं बनाता। हमने क्या किया, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा कि आप बनाओ, आप 500 बाइक लो, 1000 लो, 2000 लो, एंड वी हैव नाउ कस्टमर्स टू गेट द एंटायर जिप टेक प्लेटफॉर्म ऑन अ SaaS मॉडल। Okay. तो हमने fleeties.ai करके एक SaaS मॉडल बना दिया है, जहाँ पे किसी को भी ईवी बिजनेस बनाना है, हम इंश्योर करेंगे कि आपको धंधे का पीएनएल नहीं, हर बाइक का पीएनएल मिलेगा। फ्रैंकली इट इज अ फ्लीट मैनेजमेंट बिजनेस। Okay. इट इज मैनेजिंग द अपटाइम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लीट, दैट्स द कोर। जहाँ पे ये बिजनेस इधर या उधर जा सकता है। इफ योर यूटिलाइजेशन इज हिटिंग एट द राइट पॉइंट, दिस बिजनेस विल ऑलवेज डू वेल, बट पीपल डोंट लुक एट दैट डेटा, बिकॉज दे डोंट हैव दैट व्यू, विच व्यू is what we are providing through this data point. भाई धंधा data point है, it's an Excel sheet, right? You got to track every nuance of the Excel sheet. If it's hitting, there's a profit. If the utilization is hitting 60%, you are non-profitable. The utilization is 80%, you're profitable. वो नहीं देखा तो आप, and the asset life is also need to be managed. Like the way Indigo manages their planes. Correct. Their utilization business. Right? कि कितने कस्टमर, कितनी सीटें बुकड है। होटल बिजनेस भी ऐसा ही है, कितने होटल रूम्स हैं और कितने बुकड हैं। इंडिगो का तो स्टार्ट आया था, राइट, कि वो हर फ्लाइट पे 10-10 मिनट बचा के साल के कुछ 250 या कितने फ्लाइट्स एक्स फ्री में कर लेते हैं। इनफैक्ट दे कीप अ फीमेल स्टाफ बिकॉज वो लाइटर होती हैं, उससे उनकी माइलेज यूटिलाइज होती है। दैट्स द, उन्होंने ओवन हटाया अपने फ्लाइट में से फॉर सेम रीजन। करेक्ट। सो दोस आर नुआंसेस ऑफ एन एसेट बिजनेस। वी लाइक जिप इज आल्सो इनटू एसेट बिजनेस। 20,000 बाइकें हैं हमारी, राइट? उनको मैनेज करना इज द कोर, राइट? बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड फ्लीट इज AI फॉर पीपल who want to get into fleet management. Fleet management. Let's say I gave you a lakh tomorrow, right? What would you do with it in the EV or renewable space as a budding entrepreneur? लाख में तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा कुछ। EV business is a business which is a new technology. It's an evolving technology. बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। कल को आप एक टाइप की मोटर लेते थे, मोटर में नए इनोवेशन हो रहे हैं। बैटरी लेते थे, बैटरी में इनोवेशन हो रहे हैं। व्हीकल में नई लर्निंग्स आ रही है। तो लाख में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दिस इज अ हाई इंटेंसिटी एंड केपेक्स मान लो, कैपिटल मान लो, बिकॉज व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ डिसरप्टिव फील्ड व्हिच इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय एनीवन, यू विल हैव टू क्रिएट अ कैटेगरी, एंड कैटेगरी क्रिएशन टेक्स सम कैपिटल। यू विल फेल फॉर श्योर, राइट? सो लाख रुपए में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फ्रैंकली। Right? So basically, any entrepreneur who wants to enter, they need to have access to capital. They need to have capital or access to capital. Yeah. And आपका वो franchisee model भी है, right? In fact, I was studying it before. Sure. I was taking out the IRR. That's also an opportunity. हाँ, I was taking out that IRR and everything. So how does that work?
श्योर. सो या, सो अगेन दिस इज एन एक्सपेंशन मॉडल, क्रिएटिव मॉडल, जो हम सोचते रहते हैं एज फाउंडर्स कि क्या करें और एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी है, बट वी डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ डेट. सो व्हाट वी क्रिएटेड इज अ फ्रेंचाइजी मॉडल कि भाई किसी को भी, अगेन ईवी की अपॉर्चुनिटी सबको अच्छी लगती है, तो आप एक फोको पार्टनर हो जाओ, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेट. करेक्ट. हाँ. कंपनी ऑपरेट करेगी क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं, वी हैव अ सक्सेस ग्राफ, वी आर शोइंग इट प्रॉफिटेबली. तो अब हमें ये, और ये बिजनेस है ऑप्स का. अब ऑप्स शायद कोई भी जयपुर में बैठ के विदाउट, क्या वो डेटा पॉइंट्स देख रहा है, एक्ट कर रहा है, आई डोंट नो, बट आई हैव वायर्ड माई टीम एंड ट्रेनिंग इन सच अ वे दैट दे वर्क ऑन दोस KPIs. वो मास्टर कर लिया है हमने. तो हम कह रहे हैं कि आप फ्रेंचाइजी, आप ऑप्स नहीं कर सकते. वी डोंट बिलीव दैट यू विल बी एबल, यू विल बी एंटाइज्ड, बट सॉरी, लेट अस मैनेज द स्कोर. बट you deploy bikes, you buy the bikes from the reputed OEMs that we recommend, buy the bikes and give it to us, lease them to us over a life of the asset, and we'll give you great returns. Your capital will multiply to 50 to 90% ROI over 3 years. So I was doing this math, right? Huh. The math was that I get a bike, a Zip bike, Yes. for 45,000. Correct. Lease for a month. Yes. And for that I get 1,500 back into my account every month. Correct. Right. So if I for 36 months. For 36 months. Right. Correct. So essentially, and the minimum is 10 bikes. Correct. So if I take 10 bikes, Which is 45,000 into 10, 4.5 4.5 lakhs, Correct. I get 5,40,000 at the end of 3 years. Correct. 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 So the IRR on this is roughly 13%. Correct. Right, year on year. Correct. Right. If you look at in the absolute way. In the absolute terms, that मैंने आज इतना डाला, Correct. मेरे को 3 साल बाद इतना मिला, Correct. तो ईयर ऑन ईयर मैंने इतना कमाया. Correct. राइट. नाउ माई इंटरनल थॉट वाज कि अगर मैं म्यूचुअल फंड करता हूँ, राइट, मेरे को 14-15% IRR वहाँ भी मिलता है. Correct. सो व्हाट्स द पिच हियर? सो पिच है कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, आपने मान लो 4.5 लाख म्यूचुअल फंड में डाले, आपको 5.5 लाख 3 साल बाद का रिटर्न मिल गया, वही 13% हो गया. अब इसमें ट्विस्ट ये है कि हम आपको ये रिटर्न हर महीने देंगे. हाँ. राइट. तो अगर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 100 बाइक्स, 100 बाइक्स आप 45 लाख इन्वेस्ट करते हो, और 100 बाइक्स पे 1600. हाँ, 1.6 lakhs. हाँ. So you get 1.6 lakhs in your bank account every month. Now if you're a smart guy, right, because you want to make money, you will make 1.6 lakhs की भी सिप बना दोगे आप. 10 तारीख को जिप आपको देगा, आप 15 तारीख की सिप लगा दो इन द बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो अब आपने डबल कर लिया अपना रिटर्न. राइट. सो म्यूचुअल फंड आपको दे रहा था, आपने सिप लगा लिया, आपने हेज भी कर लिया, और वो इन्वेस्टमेंट आपका मल्टीप्लाई होकर another percent. So because we do it, so we don't do it IRR, it's a monthly paid out. So it is known as XIRR. So XIRR in this business comes to about 25 to 40%. Right? Okay. In fact, ROI, when we did the math at 1.9 lakhs, the ROI was touching 91%. This one ROI, I think, is about 50 to 60% ROI, which is return on investment. Yeah, of course. Correct. That's the plan. Okay, talking about the EV gold rush, right? कि इतना सब कुछ EV में हो रहा है. I know you said 1 lakh में कुछ नहीं होने वाला है. What are your top 3 ideas in the renewable energy sector where someone who has access to capital should go and build? Yes. So I think a lot of new businesses are coming in this new opportunity, right? So one of them is people are not looking at, so people are thinking of building vehicles. तो लोग OEM बनना चाहते हैं. Like a Euler. Like a Euler, right? और बहुत सारे Electra. हाँ. और टू व्हीलर में भी बहुत सारे OEMs हैं जो चाइना से मंगवाते हैं और बस उसको असेंबल करके बेच देते हैं. मैं कह रहा हूँ यही काम अगर आप थोड़ा स्मार्टली कर लोगे, आप चाइना से इम्पोर्ट तो कर रहे हो, बट उसको इंडिजनाइज कर लो, इंडियन सप्लायर्स के थ्रू कर लो, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ो, R&D पे काम करो. सिर्फ एक चीज़ को इम्पोर्ट करके ठप्पा लगा के मत बेचो. प्लस लोगों ने आफ्टर सेल्स नहीं सोचा, तो EV में आफ्टर सेल्स इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. कि भाई फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे OEMs की बाइक get stuck because there's no mechanic. In fact, recently Ola has suffered some issues. Now Ola, I read somewhere that Ola had said out ki now we want to outsource also. Earlier they were doing everything in house. Right? So there is opportunity to basically create mechanic workshops to ensure that EV में downtime का बहुत issue है. लोगों ने आफ्टर सेल सोचा नहीं है, उसमें अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो. व्हीकल बनाने की जगह आप उसके स्पेयर पार्ट्स में जा सकते हो. देयर इज अ ह्यूज स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री इन फ्यूल बाइक्स,
हीरो की तो यहाँ पे अगर मानेसर में फैक्ट्री है तो उसकी कितनी एंसिलरी कंपनीज हैं जो कि एक एक कोई पिस्टन बनाता है, कोई ये बनाता है, कोई वो बनाता है, क्या कहते हैं, साइलेंसर बनाता है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ईवी में भी इस तरह से अब एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप उसमें इंप्रूव करो, इंडियनाइज करो, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट चाइना। इंडिया की रोड्स बहुत अलग है, इंडिया का बिहेवियर बहुत अलग है, इंडिया का इंफ्रा बहुत अलग है, टेम्परेचर्स भी एट सम लेवल डिफरेंट है। तो आप वेट बहुत कम है, चाइना में लोग छोटे होते हैं, वेट कम होता है, राइट? तो ग्राउंड क्लियरेंस, रोड्स ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। तो यू गॉट टू इंडियनाइज थिंग्स एंड सॉल्व समथिंग गोइंग डीप इनफ। Any one opportunity that you have validated but are not looking to build, but someone else can build for you? So swapping is something that we've outsourced. Swapping, battery swapping. Battery swapping is something that we fully outsourced to our two strong partners. And that seems like pretty saturated, or is there an opportunity there today? नहीं है, opportunity तो बहुत है अभी। Yeah. क्या बहुत करें? opportunity. Suppose मुझे battery See, swapping करना if you है, map out the top 25 cities, आज all the swapping partners put together should be in 5-10 cities. अच्छा बहुत जगह अपॉर्चुनिटी। अच्छा, और सपोज मुझे शुरू करना है बैटरी शॉपिंग बिजनेस, Correct. व्हाट डू आई डू, वेयर डू आई गो, So व्हाट डू आई लुक yeah, एट? so find the right battery operator, Okay. battery maker for you, Okay. right? जो कि अच्छी चीज़, अच्छी वारंटी के साथ अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हो। Create a swapping station, Okay. right? Which is a tech which is available. There are people who are building that tech also, but invest in it. नहीं तो आप like a large operator still used to operate on a manual process. एक छोटा सा रूम लिया, उसमें बैटरी रखी, चार्ज किया, जब भी बंदा आ रहा है उसको दे दिया। People did that at scale also. So आप वो भी कर सकते हो, right? But invest in the right product. थोड़ा सा टेक बनाओ, स्केल करो, एक स्टेशन से शुरू करो, 40-50 बैटरी से इन्वेस्ट करो, then you can start that. एंड क्या यूनिट इकोनॉमिक्स होता है कि मतलब एक बैटरी स्वैप करने का कितना कमाते हैं, कितना लगता है एक स्टेशन सेटअप करने का? वुड यू नो दैट? बिकॉज आई नो दिस इज नॉट योर। That's not my core business. But frankly, it is again capex intensive. Okay. क्योंकि एक बैटरी अगर 40,000 की आएगी, हाँ, right? And even if you're investing, let's say 100 batteries, it's the same math, 40 lakhs, right? And then you'll have to The build station the and this and station, that. put some manpower, do some infra, chargers, people management, tech. So yeah, I mean, again, anything in EV is a Yeah. little deep. deep, हाँ. And again, people have done a lot of things which have not been right also. वही अपॉर्चुनिटी समझ के कि गोल्ड रश है जैसा तुमने बोला, तो बहुत लोग कूदे, बट अगेन लोग कूदने के लिए कूदे, बट अच्छे से उन्होंने ना Study नहीं डीप घुस के सॉल्व नहीं किया। तो करके सॉल्व करना है आपकी बार। whoever is listening should go deep before getting it. If you had to start a new business, let's say Zip has reached its peak, right? And you are now starting a new business in the renewable energy space, what would you do? यार फ्रैंकली मैं तो एज अ फाउंडर ना ये प्रॉब्लम रहती है, तो हम तो विद इन जिप हमने ये नए नए धंधे चालू कर दिए। जैसे फ्लीटीज हो गया। Fleeties.ai is a new business within Zip की, क्योंकि the Software founder's provide mind is करेगा। always working. Correct, हाँ। हमने एक Zip ads का बिजनेस शुरू कर दिया। Zip ads, Zip ads, बाइक पे एड चला गया, बाइक और हेलमेट। डिजिटल एड चलेगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो 20,000 बाइक्स चल रही हैं, 20,000 हेलमेट्स दिख रहे हैं हरे वाले। तो हमने एक्चुअली करीब 50 लाख का रेवेन्यू कर लिया अगले पिछले 3-4 महीने में अच्छा, बाय सेलिंग आवर बाइक क्या एसेट? हाँ, बाइक पे वो एड्स लग जाते हैं आपके फुल्ली, हाँ, यू नो, फुल्ली कवर्ड, एंड देन हेलमेट ऑल्सो। कौन ऐड लगा रहा है इसमें? रैपिडो, पेटीएम, अच्छा, Swiggy, Leverage Edu, and No Brokerhood. Lot of brands are coming, new age brands, crazy. and these guys have covered all the kind of ad platforms. Still they are coming. मतलब कुछ वैल्यू है इसमें, कुछ तो है, हाँ। कुछ अलग है ना, और दिखता है। तो इट इज अ मूविंग बिलबोर्ड, हम तो बोलते हैं मूविंग बिलबोर्ड है। एक डिलीवरी पार्टनर हमारा एटलीस्ट सड़क पे 100 किलोमीटर चलता है। हाँ, अब 100 किलोमीटर में कितने लोग देखते होंगे उसको? 20 लोग तो देखेंगे दिन में, राइट? और 20,000 लोग, 20,000 बाइक्स है, 20,000 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, सच अ ह्यूज यू नो इम्प्रेशन। और मैं तो कह रहा हूँ लोग उसमें मिस कॉल नंबर डाल देते हैं आजकल, या QR कोड लगा देते हैं। हाँ, तो यू नो ड्राइवर्स वांटेड, कॉल दिस नंबर, और हॉट लीड आ जाती है। तो लीड जनरेशन इंजन बन गया है बाइक एड्स। तो ये एक नया Very क्रिएटिव interesting. तो विद इन जिप ही नए नए बिजनेस हम शुरू कर लेते हैं। बाकी बिजनेस आइडियाज मेरे चैनल पे मैं बहुत सारे देता रहता हूँ लोगों को। ओके, अच्छा थोड़ी ऑप्स की बात करते हैं। हाउ मेनी डिलीवरीज हैपन इन अ डे, राइट? हाउ मच डू यू मेक ऑन अ डिलीवरी, हाउ मच द डिलीवरी पार्टनर मेक्स, थोड़ा एक बार वो समझते हैं। या सिंपल मैथ है, डिलीवरी पार्टनर तो जितनी मेहनत करता है उतना कमाता है। 1,000 रुपये कमा सकता है दिन का, राइट? जो अच्छे लोग हैं, कितने डिलीवरीज करके 1,000 कमा लेगा? सो फ्रैंकली 15-16, विच इज अबाउट 10 आवर्स।
15-16 डिलीवरीज में 1000 कमा लेगा, मतलब एक डिलीवरी का वो 60 कमा लेगा। फूड डिलीवरी पे 60 आता है। 60 आता है। हाँ, और क्विक कॉमर्स में तो क्या है ना, 1 घंटे में हाँ, वो 4-5 डिलीवरी से करेगा। 2 से 2.5 कर सकता है। हाँ 4-5 नहीं, इवन इफ इट इज 20 मिनट्स एंड देयर इज अ वेट टाइम, सो मैं कहूँगा 2 से 2.5, राइट, 10-15 मिनट्स, तो 2 से 2.5 डिलीवरी करेगा। एक डिलीवरी अगर 40 की होती है ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स में, 100 रुपये पर आवर हो गया। इफ यू डू 10 आवर्स 1000, 1000, वो सीधा उसके अकाउंट। सिंपल मैथ है, सीधे उसके अकाउंट में। तो 1000 रुपये की आपकी मैथ है, डिलीवरी पार्टनर उतना कमाता है। Okay, so delivery partner is making say 40 rupees on average on a delivery. करेक्ट, And he is paying Zip ka rental. करेक्ट। So Zip is making money through rental. Zip is making, Zip is not charging per delivery no, Zip is not charging the delivery partner anything. and not even charging Zomato any. No, we do charge them. We charge a portion of the delivery fee, about 4 to 5% of the delivery fee to the businesses, Okay. right? But अगर Zomato ही free delivery offer कर रहा है कस्टमर को, तो वो आपको क्या पे करता है उसमें? नहीं, हमें पूरा पे करता है भाई। अच्छा। फ्री डिलीवरी इज पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान। हाँ वो जोमेटो गोल्ड में आता है, या फिर डिलीवरी फी भी अब तो मांगता है जोमेटो। हाँ लाइक ब्लिंकिट ऑल्सो चार्जेस सम डिलीवरी फी 14-16 व्हाटएवर। तो डिलीवरी फी इज बेक्ड इन देयर मे बी मार्जिन, प्रोडक्ट मार्जिन में बेक इन करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बेक इन करते हैं। सो दे हैव अ कॉस्ट ऑफ 50 to 60 रुपीज Per delivery. या अच्छा, their cost is 50 to 60 per delivery. आएगी ना। एक ह्यूमन है हाँ जो कि अपना टाइम दे रहा है, वो फ्री में तो काम नहीं करेगा। उसको भाई एक बंदा दिन के 1000 रुपये तो कमाएगा 10 घंटे बाइक चलाने के, एज सिंपल सही बात है। 800 से 1200 रुपये वो कमाता है डिलीवरी पार्टनर, इफ ही स्पेंड्स 8 to 12 आवर्स, एज सिंपल एज दैट। सम पीपल रियली गो बियॉन्ड that also 13-14 hours, and some people are smart, they figure out routes, they figure out tech more, they use 2 apps। तो 1500 हमारे डिलीवरी पार्टनर 50-50 हज़ार रुपये भी कमाते हैं पर मंथ, because they are hard working, some of them, right? So that's their earning। we make money on our rental plans plus onboarding plus fleeties plus ये वो कई सारे revenue streams। Okay. What's the major revenue stream? Rental, Okay. That I would say is like 80-90% of the revenue. that's the core, That's the core, Right. yeah। I quickly want to talk about competition, right? So there is Yulu, of course. Let's talk about Yulu. Let's also talk कि मतलब आपके माइंड में ये थॉट आता है कि कल को दीपेंद्र गोयल वेक्स अप एंड सेज कि यार हम क्यों दे रहे हैं 50-60 डिलीवरी, हम खुद ही कर लेते हैं पूरा काम, है ना, अपने बाइक्स लगा देते हैं बिल्कुल, एंड लेट्स वर्टिकली इंटीग्रेट, बिल्कुल, राइट। और ओला इज एनीवे इनटू दिस, उनके पास तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो रेंटल को और तोड़ दें, 250 से 125 कर दें, राइट। आर दीज थॉट्स देयर? हाउ डू यू डिफेंड अगेंस्ट देम? देखो फ्रैंकली क्या है ना, सारे बिजनेसेस यूनिट इकोनॉमिक्स के हो गए, राइट। गॉन आर द डेज व्हेन यू वर गेटिंग फंड्स टू जस्ट बर्न कैपिटल। करेक्ट। अब अगर आपको बर्न करना है तो करेगा कोई भी, राइट। बट दिस बिजनेस इज अ कोर ऑप्स एंड टेक ओरिएंटेड बिजनेस। ऐसा नहीं कि आपने भाई जोमेटो को आज भी 50-60 रुपए की डिलीवरी आ ही रही है, ईवी पे भी 50-60 की आ रही है, खुद करके क्या फायदा होगा? There's no additional iota. They can't save any money doing But they will get into deploying so many assets and have to create a large peripheral area to run those assets. Again, they will also want to swim, but again, it's like building a core business, right? इस business को चलाने में टाइम लगता है, इसको यूटिलाइजेशन को लेवल्स पे लाने के लिए टेक बनाना पड़ता है, टीम की ट्रेनिंग है, मैकेनिक की ट्रेनिंग है। 220 मैकेनिक तो मेरे पेरोल पे हैं। अच्छा, तभी तो फ्लीट का अप टाइम मैं डिलीवर कर पाता हूँ। अब वो मैकेनिक को भी ट्रेन करेंगे, पेज कसना भी सिखाएंगे। दे आर अ टेक कंपनी, एनीवन कैन डू दिस बिजनेस, बट अगेन व्हाट फॉर? व्हाट आर दे गोना गेट आउट ऑफ इट? कुछ एक्स्ट्रा तो ले नहीं रहे हम। नहीं, डिलीवरी फी अगर वो अपनी 60 से कम कर सकते हैं, अगर वो खुद करते तो कैसे होगी भाई? इतनी कॉस्ट आएगी ना डिलीवरी पार्टनर की। पॉइंट इज वो बंदे को 60 रुपये तो देने ही पड़ेंगे ना, 50 दे दोगे। उसको डेंसिटी, वो इतनी मेहनत करेगा 10 घंटे, तो 1000 रुपये तो लेके जाएगा ना, नहीं तो कुछ और कर लेगा। हाँ, कुछ और कर लेगा। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। करेक्ट। तो दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क आउट द मैथ ऑफ द पर्सन। आप ड्राइवर रखते हो, दिन भर खाली बैठता है, तब भी देते हो ना 1000 रुपये। यहाँ तो 12 डिलीवरी, 15 डिलीवरी, 20 डिलीवरी कर रहा है। इट्स अ ह्यूमन, करेक्ट। ही विल टेक दैट, प्लस एसेट की कॉस्ट है, फाइनेंसिंग की कॉस्ट है। भाई हम तो साफ बताते बिजनेसेस को, जोमेटो को क्लियरली हम अपना पीएनएल दिखाते हैं, ये मैथ बन रही है, यहाँ पे आप और कर सकते हो, यहाँ पे हम और कर सकते हैं। क्लियर है यार, धंधा ऐसे थोड़ी चलता है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट्स अ कोर बिजनेस, बिजनेस की तरह चलता है। आप बताओ कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे आप कर सकते हो, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। वाह, yeah, we are partners। What about Ola? What do you think about Ola doing? Because they are also working on this same thing, right? See, Ola has built a
product for the B2C mass. A delivery partner cannot write that product. 1 लाख का प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? वही डाउन पेमेंट का इशू, वही बैटरी का इशू, बैटरी चार्ज कहाँ करेगा, राइट? उनका वो बैटरी बाहर भी नहीं निकलती, तो स्कूटर को प्लग पॉइंट के पास लेके जाना पड़ेगा. सो इट्स नॉट अ प्रोडक्ट फॉर अ डिलीवरी पार्टनर. सो देयर फोकस, एनीवेज देयर फोकस इज आल्सो नॉट अ डिलीवरी पार्टनर. उनका फोकस ही है कि भाई हम तो को B2C ऑडियंस इतनी बड़ी है. भाई आज की डेट में आई वाज सिटिंग विद फाउंडर, हीरो स्प्लेंडर 2.5 लाख बाइक बिकती है. एथर 18,000 बाइक बिकती है महीने की. ओला अभी थोड़ी कम हो गई है, 15,000 बिकती होगी. इतना बड़ा मार्केट है B2C. Such a huge, so that is the opportunity that they आए कि ये जो 2.5 लाख बाइकें EV पे मूव हो सकती हैं, उसको पकड़ते हैं ना. आप क्यों नहीं सोचते हो कि आप तो बना ही रहे हो EV बाइक्स, राइट? यू कैन. हम नहीं बनाते. We have OEMs who make the bike. See, I think हम करने को तो 1000 चीज़ें कर सकते हैं. फोकस 8 साल में एक ही चीज़ सीखी है कि बिजनेस में ना एक कोर फोकस ऐसे करके सॉल्व कर लो अपनी इंडस्ट्री. आइडियाज़ बहुत आएंगे, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. बहुत लोग बोलते हैं आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, बाइक भी आप बना लो. लोग आके पूछते हैं वो ग्रीन वाली हरी वाली बाइक दे दो हमें, राइट? तो हम बेचते नहीं हैं भाई. हमारा एक कोर बिजनेस है, हम टेक कंपनी है, राइट? वी विल यूज़ डेटा टू प्ले द गेम ऑफ यूटिलाइजेशन. हमें वही आता है क्योंकि कोर वही है. पिछले 15 साल से वही कर रहे हैं, नौकरी में भी वही किया. सो दैट इज़ वॉट वी नो वेल. वी रादर फीड इन दैट डेटा टू आर OEMs की यार बाइक में ना ये खराबी है, क्योंकि तुम्हें डेटा नहीं पता. बाइकें हम चला रहे हैं, हम OEM को डेटा शेयर करते हैं सो दैट दे कीप इम्प्रूविंग द एसेट. सो इन अ वे Zip with all the data is somewhere creating the best mass asset for India. Correct. And if it is working in India, possibly for other markets. Sure. So let's talk a little bit about your journey. Sure. Right? You started with Mobisi, right? It was a bike sharing app. वो idea कैसे आया? What happened there, right? And then how did you arrive at this pivot? Yeah, so frankly, I was looking at a lot of business ideas. अच्छा, entrepreneur बनने का thought हमेशा से था? हाँ. बचपन से था? ये बचपन से था. Okay. Frankly, ये बचपन से ही था कि entrepreneur बनना है, because I have seen my family building a lot of businesses. My dad was a doctor. Okay. Right? तो मैं बहुत दूर से देखा business बचपन में, but मेरे को बड़ा entice करता था. जो लोग बातें करते थे ना P&L की, जो मेरे भाई लोग थे, मेरे सारे कजन्स गल्लों पे बैठते थे. मेरे एक मामाओं की सबकी फैक्ट्रीज थी, बेयरिंग फोर्जिंग्स की, राइट? तो वो एक अलग दिखता था मुझे, द वे दे यूज्ड टू रन अ बिजनेस एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे यूज्ड टू फील. एंड देन माय चाचा साइड, दे ऑल यूज्ड टू हैव डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ मेडिसिन्स. Okay. तो उनके मेडिसिन के बिजनेस चलते थे, वो भी धंधे की बातें करते थे. मैं थोड़ा सा इतनी बातें नहीं करता ना, मेरे को समझ में नहीं, बट मेरे को इंटाइस करती थी ये बात. क्या चीज़ इंटाइस करती थी आपको? यही यार, प्रॉफिट, रेवेन्यू, स्कोप, ये कैश इतना जनरेट कर लिया, ये, एंड देन द लाइफस्टाइल अराउंड इट, द कनेक्ट्स, द पीपल दैट दे वुड मीट वुड बी मोर एक्साइटिंग. तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता था, दैट लाइफस्टाइल एंड द काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई वाज मिसिंग. प्लस आई थिंक समवेयर खून सा होता है वो, द प्लेस दैट आई कम फ्रॉम, राजस्थान, जयपुर, बनिया, मारवाड़ी, उनमें होता है थोड़ा सा. आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज वी हियर दैट अ लॉट. वी लाइक टू हियर द बिजनेस लैंग्वेज. तो मुझे भी बचपन से था, बट आई हैड फ्रैंकली नो क्लू कि मैं बिजनेस बना पाऊंगा, क्योंकि वायरिंग ऐसी नहीं थी, ना ही कोई फंडिंग थी लाइफ में, राइट? आई हैव नेवर टेकन मनी आफ्टर माई स्कूल फ्रॉम माई पेरेंट्स कि भाई नो. आई नो दैट द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट वी हैव कम फ्रॉम, कि मैं नहीं मांग सकता, राइट? मतलब आई नो दैट वी लिव दैट लाइफ स्टाइल, सो आई वुड वॉन्ट टू curtail myself in terms of asking for anything. तो hence I had to go straight away into the job. जॉब ही था, right? तो business was very deep down somewhere कि I like it. करना तो है. But it was very clear that I will not be able to do it. मतलब जब इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग ही था. जब MBA था, ये गोल था कि एक अच्छी नौकरी लग जाए, और कभी ना कभी मार्केटिंग में कुछ करना था जिंदगी. अच्छा, तब तक अभी नहीं, ये था कि बिजनेस करना है, बट एक्टिवली नहीं ढूंढ रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं, वायरिंग ही नहीं थी कि आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो इन लाइफ, फ्रैंकली. एंड नोबडी पोक्ड मी आल्सो इन माय लाइफ, नीदर माय पेरेंट्स नॉर एनीवन अराउंड मी कि यार तेरे को ना कुछ ऐसा करना है. किसी ने ना, दोस्तों ने ऐसा कुछ कभी बात हुई. मेरे दोस्त भी सारे वैसे ही थे, नौकरी वाले. अच्छा. तो जॉब वाले, क्योंकि मेरा वो कनेक्शन ही नहीं था बिजनेस वाले वर्ल्ड से. तो मैं मतलब मेरे को कहीं बिजनेस का था नहीं कि मैं बना पाऊंगा, फ्रैंकली. दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. राइट. बट इट ट्रिगर्ड with, again, when I saw a lot of startups coming out, right? And frankly, while I was in Airtel, I had a life-changing moment where
I realized that hey, I wanted to be an entrepreneur. कैसे? हाँ, वो मतलब उसमें वही एक स्टोरी है that someone told me to write my dreams. अच्छा. One of my seniors told me कि अपने ड्रीम्स लिखो. तो ड्रीम्स लिखने बैठा तो लिखा कि यार entrepreneur फर्स्ट ड्रीम. अब वो लिखा तो वो बहुत ही सामने आ गया. एंड उन्होंने ये भी कहा कि यार अब ये लिख लिया है ना, अब इसको अपने सामने लिख लो, मतलब फोटो लगा लो. तो मैंने वो भी कर लिया. Seriously, and I think a lot of people talk about visualization, but I have done No, it. it works, yeah. I have done it. So I actually built a chart and put it in front of my room, and I used to visualize. मतलब मेरे को तब मेरे को दिमाग में आया वो जो ड्रीम था ना, it's now. Is there? I'm seeing it. No, I'm seeing it now. I've started living it. I wanted to live it. अच्छा, जब आपने ये लिखा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, फर्स्ट ड्रीम, ये भी रिफ्लेक्ट किया कि यार क्यों बनना है, क्या चाहिए मुझे इससे? हाँ, सो आई थिंक उसमें एक और चीज़ थी मेरे को कि एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ बड़ा इम्पैक्ट अगर मैं कर पाऊँ. बिकॉज देन आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ दी शार्क टैंक्स देखने लगा मैं बहुत ज़्यादा. फिर मैं वो सिलिकॉन वैली देखा यूएस वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग. फिर मैंने सारी जो जितनी भी सीरीज भी बनी वो सब देखने लगा. राइट, ये भी क्रैश्ड आया, वो देखा मैंने. ऊबर वाली स्टोरी सब मेरे को बहुत. प्लेलिस्ट देखा आपने स्पॉटिफाई? प्लेलिस्ट देखा, मैं सब देख लिया. अगर एक दो तुम बताना तो मैं डेफिनेटली देखूंगा, बट मैं आते ही देख लेता हूँ. अभी 13th आया, वो भी देख लिया. वो लेटेस्ट में को किसी ने डाला तो मैं सब देख लेता हूँ. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो देखना. तो वहाँ से ना थोड़ी वायरिंग चेंज हो गई जब वो लिखा. देन आई स्टार्टेड लिविंग दैट कि हाउ टू गेट देयर. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट then you start acting towards it, right? कि गोल बना लिया, गोवा जाना है तो फ्लाइट बुक करोगे. करेक्ट. इसी तरह से गोल बना लिया बनना है तो फिर कुछ तो करूँ. then I started reading a lot about it. Okay. Entrepreneurship क्या है, कौन कर रहा है. and the good part, the same time Indian startups were coming out. तो जब मैं एयरटेल में काम कर रहा हूँ तब मैं रोज पढ़ रहा हूँ there's a Paytm, there's a Make My Trip, there's an Ola, there's a Snapdeal, there's a Flipkart. ये सब पढ़ रहा हूँ. तो मैंने कहा यार ये कंपनियाँ भी आ रही है. and luckily again happenstance, right, कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज लीविंग एयरटेल एंड वॉज ज्वाइनिंग स्नैपडील. तो लास्ट दिन मैं उसको मिला, उसका लास्ट डे था. मैं तो एयरटेल में ही नौकरी कर रहा था. मैंने उसको कहा यार देख अगर कुछ हो तो बुला लियो. 2-3 महीने बाद उसने कॉल कर लिया कि ओपनिंग है स्नैपडील में, अप्लाई, इंटरव्यू दे. मेरा हो गया वहाँ. तो आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग तो मैंने कहा मेरे को तो आता नहीं, कुछ नहीं आता बिजनेस के बारे में. एयरटेल थोड़ा बहुत आ गया था, मार्केटिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, एग्जीक्यूशन, हार्डवर्क, वो सब बेसिक्स ठीक थे, बट बिजनेस की अब समझ लेते हैं. तो आई वेंट इनटू स्टार्टअप्स. तो पहले स्नैपडील गया, वहाँ पे बहुत मज़ा आया, बड़ा स्टार्टअप था. मैंने कहा और किसी छोटे में चलते हैं. फिर मोबीक्विक चला गया, वहाँ पे फिर हेड ऑफ मार्केटिंग बना. वहाँ पे ऑलमोस्ट डिड द बिजनेस राइट क्लोजली with the founders, Bipin and Upasna. उनके साथ पूरा business, almost every day, every problem, everything we are solving together. Wow. Right? So almost, being in the founder's shoes, I'm executing everything, suggesting that ये करते हैं, and they're saying हाँ करते हैं. So doing that, right? So that's the beauty of working in a smaller startup, that you get to, do everything with your hands and fail also and learn also, build teams also and see that rigor, right? तो वो मज़ा आया. तो जब ये 10 साल लगा दिए सब करने में एयरटेल और ये सारी नौकरियां करके 10 साल लगे, बट बैकग्राउंड में चल रहा था, एक और मैच चल रही थी. तो बैकग्राउंड में नौकरी मैं सीख रहा हूँ, तो वहाँ पे 10 घंटे लगाने, 12 घंटे लगाने, बट अपने दिन के 3-4 घंटे स्टार्टअप पे मैंने स्पेंड करना शुरू कर दिया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. तो क्या सीख रहे थे आप? तो मैं समझ रहा था, मैं बहुत सारी कंपनियों को स्टडी कर रहा था, किस तरह के स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप टर्म क्या है, फंडिंग क्या होती है, ये सीरीज़ ए क्या है, सीरीज़ बी क्या है. फिर किसी कंपनी की फंडिंग हुई, उसको पढ़ने लगा कि क्या है, क्या करती है. थोड़ा फाउंडर्स की फिर ये आने शुरू हो गए थे, पॉडकास्ट आने शुरू हो गए थे, थोड़े इंटरव्यू जैकमा वगैरह के आते थे, वो सब सुनने शुरू किए. इनकी वायरिंग थोड़ी समझने लगा, टीम कैसे बना रहे हैं. सिलिकॉन वैली, वो अपना स्टार्टअप का पूरा एक शो है ना उस पर यूट्यूब पे, राइट, अपना वाई कॉम्बिनेटर का, वो पूरा देखा. तो थोड़ा वायरिंग ट्यून करी while at the job, started thinking about it, then started writing pitch decks. एक दो businesses के बारे में चमका, एक दो US शार्क टैंक में देखे, तो हमने एक शू का बिजनेस समझ में आया था, तो हम निकल गए. अच्छा, दिल्ली निकल गए. वहाँ पे जो ओल्ड दिल्ली में पता नहीं कौन कौन से चावड़ी बाजार वगैरह से जूते ले आए, सैंडल्स ले आए, वो कुछ था एक सिस्टम, वो बनाया. फिर वो नहीं समझ में आया तो एडटेक का एक बिजनेस प्लान बनाया कि यार हम लोग तो एजुकेशन करी, बट मेरी खुद की जर्नी थी कि मेरे को कुछ
ऐसा तो सिखाया ही नहीं एजुकेशन ने कि मेरे को फिनेंस नहीं आया, मेरे को लोगों से नेटवर्क करना नहीं आया, मेरे को स्टॉक मार्केट नहीं आया, मेरे को सेल्स करना भी नहीं आता, तो क्या मैं ऐसा कुछ बिजनेस प्लान बना सकता हूँ कि मैं स्कूलों में ये चीज़ सिखा सकूँ? तो आई बिल्ट अ डेक अराउंड इट. एडटेक नहीं कहूँगा उसको, फिजिकली था एक्चुअली, तब तक एडटेक नहीं आया था, 11, 12, 13 की बात है. तो एडटेक वॉज नॉट देयर, इतना दिमाग था नहीं कि टेक्नोलॉजी भी लगानी है. तो हम तो स्कूलों में चले गए, कॉलेजेस में चले गए कि ये सिखाते हैं लोगों को. तो रिसेप्शन मिला, प्रिंसिपल से मीटिंग मिली, बट उन्होंने कहा यू हैव टू फिगर आउट आफ्टर द स्कूल टाइम. मैंने कहा हम कैसे करेंगे, वो थोड़ी स्कूल टाइम एक्सटेंड करेंगे. तो थोड़ा पीछे हट गए, इतना लगा कि नहीं हो पाएगा फिजिकल सेटअप्स वगैरह, तो आगे बढ़े. फिर एक बिजनेस बनाया, राशि, विच इज़ हु इज़ माई को फाउंडर एंड माई वाइफ, क्रिएटेड लेट्स फ्लॉन्ट एज अ साइड हसल. तो ये एकदम एक दिन कहा कि ये भी एक बिजनेस चल रहा था यूएस में, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, जो कि टी शर्ट पे ना डिज़ाइन प्रिंट करके देता था. तो हमने कहा लेट्स फ्लॉन्ट वॉट एवर यू वांट टू फ्लॉन्ट. You have a coat to flaunt, a person to flaunt, your lifestyle to flaunt, right, your celebrity to flaunt. Just get a tool. हमने वेबसाइट बनाई, उस पर टूल बनाया कि आप कोई भी पिक्चर बना लो, उसको टी शर्ट पे देखो कैसी लग रही है, ऑर्डर कर लो. प्रिंट ऑन डिमांड, राइट, ऑन मग्स, पोस्टर्स, टी शर्ट्स. फिर धीरे धीरे मोबाइल कवर्स, बहुत कुछ ऐड किया, मशीनें ली, टीम बनाई, प्रिंट करके उनको चला ये बिजनेस. शॉप क्लूज, स्नैपडील, अमेजोन, सब पे दबा के सेल हो रही थी हमारी. दिन की 100 टी शर्ट से बिक रही थी. या मतलब 2-3 करोड़ 4 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था, अच्छा 50% प्रॉफिट मार्जिन, बिजनेस बन गया था. तो राशि ने तो नौकरी छोड़ दी फिर अपनी. 7 साल शी वर्कड इन S&P, शी लेफ्ट अ जॉब टू रन इट फुल टाइम. बट मुझे लगा कि ये उतना पीक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ना कुछ डिज़ाइन कंसर्न्स भी आ सकते थे कि यार इलॉन मस्क की फोटो, अगर इलॉन मस्क ने बोला मेरी फोटो कहाँ से आई, इट कैन हैपन. तो हमने कहा, मेरे को लगा बैकग्राउंड में कि वाइल इट इज़ अ गुड कैश काउ बिजनेस, I want to build something big. Is that business still running? No. We shut it the day I started this. Oh, okay. हाँ, वो भी एक बड़ा कॉल लिया था. अच्छा. बट वो बिजनेस अच्छा चला, बहुत कुछ सीखा. बट मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं अपनी अच्छी जॉब को छोड़ के कूदूंगा तो एक तो बड़ा बिजनेस बनाऊंगा और मैं कुछ अच्छा इम्पैक्ट लेके आऊँगा. तो आई वॉज वर्किंग ऑन द बैकग्राउंड. तो while I was fully involved in the first couple of years in Let's Flaunt as my side hustle, I was printing t-shirts, I was packing t-shirts, I was printing those, AWDs जो आते थे, उनको प्रिंट करके रोज कुरियर करते थे. मैं डिज़ाइन बनाता था बहुत सारे. I used to be the chief designer. मेरे को कोरल ड्रॉ मास्टर हो गया था, Adobe कोरल ड्रॉ सब बनाया मैंने, राइट. सो फ्लाइटों में बैठ के बनाता था डिज़ाइन, पता नहीं क्या क्या करता था. एग्जीबिशन लगाते थे हम वीकेंड पे मॉल पे जाके हम एक इस तरह की टेबल पे टी शर्ट्स रखते थे और 10-12 घंटे खड़े होते थे, राजमा चावल लेके जाते थे, टी शर्ट बेचते थे. लोग आते थे, 500 की टी शर्ट लेते थे, हमारी 200 की बनती थी, बढ़िया मार्जिन आ रहा था. 10-12 हज़ार की स्टॉल लगती थी, सेलेक्ट सिटी वॉक और इन सब में लगाते थे. तो वो गंदा वाला हमने असल किया. मतलब यू वोंट इमेजिन, नौकरी 5 दिन, सुबह 10 बजे मॉल में, रात को 10 बजे 11 बजे घर आते थे, टी शर्टें गाड़ी में भर के वापस. दैट इज व्हाट टोल्ड अस कि बिजनेस बनाना मतलब मेहनत तो है, करेक्ट, बट अगर और कुछ बड़ा बना सकते हैं तो लेट्स ट्राई दैट. तो गॉट दैट कॉन्फिडेंस एंड द वायरिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप हैपेंड फ्रॉम दैट. And then how did Mobisi happen? Now this happened in 2017, right? So while I was wanting to converge this thought of building a big business along with a big impact, and that's when electric mobility first time came in front of me. So 2017 में Silicon Valley में one of the biggest Series A rounds happened for Lime Bike. And Lime Bike was built by Lime Bike or Bird. They were two companies at the same time. It was started by the co-founder of Uber, right? Who started Bird. And Lime Bike also was an influential, someone. So that was the first Series A, big Series A, which happened in that year. मैंने कहा ये interesting है. It is a big business, plus it is a big impact. It's sustainability. Now this is the opportunity which is right, and it is a tech business. It is an IoT, it's a software, there's an app, there's mobility. It's very interesting, right? अगर अब मैंने business नहीं बनाया, then I'm fooling myself. This is hitting all the chords that I would want to see in this business. I jumped into it. When this thought struck, 5 days on a trot, I was just working on my business plan, on my Excel sheet. I created logo in 3 days of the brand that I want to launch. Mobisi was booked, and things were ready, and then company formation shuru hua. Then naukri chodi. But everything happened in those 3-4 days because the final thought was just matching what I wanted to build. And then what happened? Matlab, we know. Then we failed. And why did that happen? Yeah. Then we failed because that business, frankly, whatever the inspiration was. I mean, कोई नहीं चला पाया उस business को. Globally कोई नहीं चला पाया. Globally कोई नहीं चला Right? तो हमने भी मजे में शुरू कर दिया. But as shit happens, as they say, तो shit happened, and 6 months
We got good response for the first 3 months, but 6th month we realized that. There was another company called Bounce. Yeah, Bounce. वो भी यही कर रहे थे, right? Correct. Bounce, Vogo, then Yulu came. Ola launched 8,000 cycles. Yulu launched about 10,000. Zoomcar launched the same business. Ofo, the Chinese giant, came into India. Mobike, the Chinese giant, came into India. So we, as the smallest operator, the first mover, we became smallest within 6 months. And then, you won't believe, all of these 10 companies which launched this business, all of them died after a year with that business model. Only 2 survived. One was Yulu, one is us. Right? Because we, I think, were only doing that. The power of focus. Ola was building cabs business, साथ में ये बनाया. Bounce was doing petrol, साथ में ये बनाने की कोशिश. Right? While Vogo and Bounce के साथ थोड़ा COVID struck, and hence their petrol fleet, utilization got killed, and their business model was only dockless bike sharing, which was the US concept, which died everywhere. तो हमने 6 महीने में पिवट कर लिया वो कॉन्सेप्ट. हमें समझ में आ गया ये नहीं चलेगा. 6 महीने में आपने रियलाइज किया कि ये नहीं चलेगा. एंड देन हाउ डिड यू रियलाइज कि ये जिप बनाना चाहिए? हाँ, तो हमने भी साइकिल से शुरू किया था. फिर ई बाइक्स लाए, फिर स्कूटर आए, तो ये एक पिवट हुआ. वो कंपनी साइकिल पे ही चल रही थी, वो वहीं पे खत्म हो गई. राइट? प्लस बाउंस और उन्होंने क्या किया, फ्यूल्ड बाइक से किया, वो भी खत्म हो गई. ईवी में मैथ बन सकती थी, ये क्लियर हो गया था, तो स्कूटर पे करेंगे. साइकिल आउट हुई. फिर हमने कहा ये डॉकलेस वॉकलेस और ये बाइक शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं चलता, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं चलेगा. हमने कहा कि रेंटल चलाते हैं, लॉन्ग रेंटल. जिसको कमिटमेंट है 7 दिन या महीने का रेंटल ले और अच्छे से चलाओ. हम ये डेली के पचड़े में नहीं पड़ेंगे कि 2 राइड हो रही है, 1 राइड हो रही है, 50 रुपए आ रहे नहीं आ रहे. नहीं, फिक्स्ड है. दिन के 250 दो, या उस समय तो 150 दो, लो, बट ढंग से लो. राइट? तो ये किया. फिर जब ये हम करने लगे, तब हमें समझ में आया कि 80-85% यूजर्स तो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं. अच्छा, वही लोग रेगुलर रेंट कर रहे हैं, वही जोमेटो की टी-शर्ट पहन के क्यों चला रहे हैं. B2C लोग भी दिखते थे, 1-2 कपल वकल बैठ के, तो बहुत कम थे. ज़्यादातर डिलीवरी पार्टनर आते थे. और हमने कहा कि ये तो डिलीवरी पार्टनर की अपॉर्चुनिटी सॉल्व कर रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी रीब्रांडेड. क्योंकि मोबिसी का ब्रांड भी अच्छा बन गया था और वो बाइक शेयरिंग और स्कूटर शेयरिंग से लिंक था. देन वी सेड कि नाउ वी विल जस्ट पिवट इनटू जिप, व्हिच इज ओनली स्कूटर, ओनली लॉन्ग रेंटल्स, and with a delivery focus. So your customer was never the big Zomato, Swiggy, Zepto. It was always a delivery partner. Always a delivery partner. And still is. It is still the primary customer is the delivery partner. They are secondary customer. Why they are secondary customer? Now I'll tell about them also. So why Zomato, Swiggy, Zepto, Blinkit, Uber, Rapido, Porter, Flipkart, Amazon, why are they integrated, or why do they want to integrate with Zip? I'll tell you that. तो आज की डेट में मैंने तुम्हें समझाया था कि 30% लोग जो इनकी करंट सप्लाई है वो चर्न होती है. राइट? एवरी मंथ 15 से 20-25% लोग जा रहे हैं. अब इनको नई सप्लाई लानी है. कहाँ से लाएंगे नई सप्लाई? अब नई सप्लाई वही होगी जिसके पास बाइक होगी. बाइक लेने के लिए इनपुट बैरियर्स बहुत सारे हैं. तो हमने कहा कि बाइक लेने का बैरियर खत्म करते हैं. ऐसे बंदे को लेके आते हैं जिसमें इंटेंट है. आपने क्वालिफाई कर दिया सप्लाई को. हाँ, हमने नई सप्लाई क्रिएट कर दी. हमने सप्लाई का पूल बढ़ा दिया. जिस बंदे में इंटेंट है मेहनत का, उसको स्कूटर दे दिया डेली रेंटल प्लान पे. फिर जोमेटो को भी इसकी ये सप्लाई चाहिए, जेप्टो को भी ये सप्लाई चाहिए, क्योंकि ये नया पूल सप्लाई का है, अच्छा है, मेहनत करता है, 1000 रुपये कमाना चाहता है, तो हमारे साथ काम कर लो. विच इज़ वाई दे गॉट इंटीग्रेटेड. एंड ईवी है. हाँ, ईवी गोल भी है, ESG गोल भी है, गवर्नमेंट गोल भी है, वो भी कनेक्ट हो रहा है. So who was the first big customer that you signed? I think we started with 2 B2B customers, Big Basket and Amazon. And how did those deals happen? Like, did they approach you, or like you went to them? Like, no, they approached us. They approached you? Yeah, they approached us because see, we had a brand. We were a respectable EV brand for the last 8 years. वो हमारा consistent रहा है क्योंकि हम early mover थे. तो कहीं ना कहीं हम जो भी कर रहे थे पहली बार ही कर रहे थे, but हम जो भी कर रहे थे at उस समय के हिसाब से अच्छे स्केल पे कर रहे थे. राइट? क्योंकि और कुछ था ही नहीं. राइट? तो हमारे पास लोग जरूर आते थे क्योंकि ईवी का इंटेंट सबका था. तो अभी भी हमारे पास बहुत कस्टमर्स आते हैं, बट वही है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन आवर काइंड ऑफ यूज केस कि ईवी को सॉल्व करना जरूरी था रादर देन प्लेंटी करना जरूरी था. तो हमने भी आसान से किया. ऐसे नहीं कि 20,000 इज नथिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, बट इट इज समथिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव. तो अगर देखा जाए तो हमने बहुत ही स्लो ग्रोथ करी है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी डिसेंट बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. And if you had to name like 2 challenges or 3 challenges, the key challenges that you have solved to successfully run this business, right? What are those 3 things? Yeah, so I think the first thing that we constantly kept solving is the right product
and the right OEM to build it. Okay. Yeah, because again, that is where people fail because they don't go into what is the right product, right? तो किस तरह की मोटर इंडिया में चलती है, किस तरह का साइड स्टैंड इंडिया में चलता है, किस तरह के प्लास्टिक ये सब आपने फिगर आउट किया, किस तरह के वायर्स चलते हैं, जल भी जाते हैं, सर्दियों में कैसे चलता है, गर्मियों में कैसे चलता है, बारिशों में क्या होता है. Because we've gone through 8 years and so many seasons and so many types of bikes, we have kind of gone to every mistake that could have happened in the business, right? तो हम वो चीज़ सॉल्व करते गए, right? But then sorry, just interjecting here, हाँ. does that also mean that you have a contract with the OEM saying कि जो अब हम डिस्कवर कर रहे हैं वो अब जाके किसी और को नहीं बना के दो? Yes. Because आपने सारी डिस्कवरी कर ली, वो तो किसी को ही बना के दे. We have an IP on that. You have an IP on Yeah. It's a product is registered as a zip product. Okay, but they are manufacturing it. They're contract manufacturing. They're contract manufacturers. Correct. Absolutely. But if they provide the same product to someone else, it's an IP infringement. It is. But if they change something slightly and they provide it, then it's not. Then it's anyways an execution play. Okay. हमें पता है लोग बाइक खरीद लेंगे फिर डेटा में खो जाएंगे, टेक नहीं बनाया. Okay. क्योंकि एक ही मूविंग पीस तो नहीं है ना. हाँ. इस बिजनेस में स्कूटर दिन में 100 किलोमीटर चल रहा है, सोचो कितने मूविंग पीसेस हैं. ड्राइवर चेंज हो रहे हैं, किसको बिठाओगे किसको नहीं बिठाओगे, वहां पे एक साइंस बनी हुई है. आप कंफर्टेबल हुई कुछ नहीं. हाँ नहीं ऐसा नहीं है. आई थिंक वी हैव टू बी ऑब्वियसली कंपीटिंग विद आवरसेल्व्स ऑल द टाइम, बट आई थिंक दैट इज द वे दैट वी रन द बिजनेस. बिकॉज हमें पता है कि प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत है इस बिजनेस में. बट वन मोर थिंग, आपने OEM को कैसे कन्विंस किया कि यार हमारे साथ को इनोवेट करो, जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन चेंज करो, मोल्ड चेंज करो, supply line, manufacturing line change karo? That's not an easy conversation to have. That's not an easy conversation, but that is why you have to pick the right partners. Okay. Right? So which is why I didn't go to the top. मैं एक बार गलती कर चुका था, टॉप OEM के साथ पार्टनर किया. वो सुनेंगे ही नहीं कुछ. हाँ, वो सुनेंगे नहीं, वो ट्वीक नहीं करेंगे, उनकी R&D साइकिल्स बहुत लंबी होगी, वो प्राइसिंग पे रोज बैठ जाएंगे. Right? They won't understand the nuances. They won't open their numbers very easily. But for me, the life of OEM is as important as my life. Correct, yeah. So I very deeply track it, and the life of the product is also. तो हमने बहुत उसमें again ठोकरे खा के we built the right structures, the right contracts, the right partners with the right DNA. So it is the right DNA mapping. और ये cold outreach होता था कि कोई आपको introduce कराता था? देखो यार, क्योंकि again मैंने एक चीज बोली कि Zip का नाम हमेशा से था, तो लोग people were willing to meet. हमारे पास हमेशा 5 OEM आगे से आके बैठे रहते हैं कि हमारे साथ काम करो. अच्छा. Everyone wants to work with us because we have plans and we have deployed the field. Sure. We have the capabilities. But then we are the ones who appoint the OEM. हम select करते हैं कि किसके साथ काम करना है. क्योंकि हमारा process is a long checklist of 60 items to select an OEM. Product, his company, their experience, their factory, their SLA, their quality, their warranty, their OESs. Lot of things go into that. So the first challenge was the product. What's the next one? The next one is battery, right? How to solve for the battery, right? Whether we should buy the battery, what technology, whether we should swap it, whether we should do fast charging, slow charging, how many kilowatt, right? That's one thing that we constantly, hammered on. And then we realized that swapping is a good, trajectory to work on. And hence we created swapping partners into the business. And I think financing is a very big key in this business. That's the third Cracking one. financing is a big piece because EV, आज की डेट में कोई EV कंपनी शुरू करेगा उसको financing नहीं मिलेगी, 20-25% पे लोन मिलेगा क्योंकि it's a new industry. Banks also don't fund this because nobody has seen the afterlife. End of life नहीं देखा, fleet management नहीं है, utilization are poor across the industry. And hence you got to showcase what you can deliver, and that is only number, Excel sheet. So we've worked on that, right, to deliver the numbers that even a banks now understand, right? So that is how, I would say. And you were at Snapdeal. You saw billions being burnt in cash wars with Amazon, with Flipkart, right? What are some of the learnings you took from there that you decided कि यार अपने business में ये सब तो नहीं करूँ? See, frankly, one is when you start your own business versus you work somewhere, very different. Of course. You have to unlearn everything. तो मैं कहूँगा मैंने इन कंपनीज में वो चीज़ें सीखी जो मुझे मेरे स्टार्टअप में लेके आनी है. जैसे मैंने एयरटेल से सीखा. एयरटेल में ना हर 1.5 year, I worked for 4.5 years in Airtel.
and I want to work a lot. Still, I worked in Airtel very happily for 4.5 years. क्यों? क्योंकि हर 1.5 साल में they had a policy that you can change your role, you can upgrade yourself, Okay. you can take a promotion, put an IJP, internal job posting, and you can apply for a higher job. I like that. I implemented it here. फिर मैंने Snapdeal में देखा कि ESOP structures कैसे और better हो सकते हैं, right? How to make it more amenable, Snapdeal MobiKwik से, so that people like to work in your company as their own company. So I learned some of the things and implemented it. Leave policies, in fact किस तरह से better retention policies बनाए. तो बहुत सारी चीज़ें उस तरह से सीखी कि बिजनेस में क्या सीखना, क्या अनलर्न, क्या नहीं करना है और क्या करना है. बट जब आप बिजनेस में कूदोगे तो हर चीज़ आप ही का फ्लेवर आएगी. वो धीरे धीरे आप सीख लोगे कुछ कुछ चीज़ें, but it is a core thing that you want to build. Everything is nuanced, like every table, chair, every creative, every person here is curated. If you've seen our office, everything is curated to the T. Yeah. कि ऐसा होना चाहिए. So that is what you have to then give your own through experience. And how was it working with Kunal Bahl and Rohit Bansal? Like how was that experience? Amazing, yeah. Frankly, I think crazy energy. The founders, वही सीखने को मजा आया, right? वही लगा कि we can also build that. Again, this is also very interesting anecdote that Dell Services, my first job, Michael Dell is a personality. Airtel, Sunil Bharti Mittal, I could see that he works in that Delhi office. I went to that office once around him. Snapdeal, while I was not so much with Kunal and Rohit, but I could see them walking. I could attend a few meetings with them, right? Walking in the corridor. So they were so close कि यार इसी तो कम now इसी building में काम कर. MobiKwik, I was in the cabin every day. Right. तो फाउंडर की केबिन में पहुंच गए. So then the logical progression was कि now we can also build. Okay, moving on to starting a business with your wife, right? How is that? मतलब लोग तो colleagues और दोस्तों के साथ शुरू करके नहीं संभाल पाते, right? So this is a very tricky territory that you decided to enter. Yeah. तो ये कैसे हुआ and how has the experience been? I know, yaar. It has got it's definitely a lot of positives and a lot of negatives also. Frankly, I've been candid, but for me it was very clear on day one that if I have to have a co-founder, it has to be Rashi. Okay. Why? Because one, we built a business together, which was Let's Flaunt. She built it fully. She had run that business all by herself, doing the gory execution that it required, printing t-shirts, putting those guys, going to the OEMs, building that. Even we went to Tirupur buying material. We went to Lucknow buying those, cloth fabrics which used to come. उनको बनवाते थे हम अपना product खुद से. The kind of, knitting that we want, everything she was into it. So one, she understands operations and she was good in finance, right? So and there are, I think, a lot of, I would say, complementary skills. We don't think same. We're very different in our thinking. In fact, a style. question था that what is that one thing that she does very well that you don't do? Whatever I do very well, she does the opposite things very well. I can put it like that. Okay, so how? बहुत अलग है उस तरह से. जैसे क्या है आप? जैसे मैं नई चीजें सोचता हूँ. मेरा काम जिप में है सिर्फ नई चीजें करने का. जो आज नहीं हो रहा वो मेरा काम है क्रिएट करने का, राइट? राशि का काम है कि उसको ढंग से चलाना वाया फिनेंस प्रोसेसेस. तो उसका फिनेंस देखना राशि का काम है कि इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट? मे बी एंड देन वी हैव अ थर्ड को फाउंडर तुषार. Correct, yeah. उसका काम है इसको बहुत अच्छे से चलाना, इसको और ऑप्टिमाइज करना, right? Which is the core of ops, right? Which is where he comes into the picture. So that is how we've segregated our roles very clearly. Okay. Yeah. So you are constantly looking for new opportunities and seeing कि हम इसको और expand कैसे करें. Correct. New opportunities within what we are doing. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम currently कर रहे हैं उसमें भी improvement हो सकता है, वो भी एक opportunity है. Plus new opportunity कि और नया भी क्या कर सकते हैं. Both those things. Okay, when was the last time you thought कि यार नहीं हो पा रहा है, बंद कर देते हैं, it's getting too much? Yeah, I think these have been, founder's life is marred by this, right? You get those thoughts, that hey, why it was such a tough day, right? Why this deal didn't happen? Why this almost yes turned out to be no, right? Why that good person, good employee
is not joining or possibly leaving, right? So a lot of challenges keep coming, but I think rather than thinking कि बंद कर देते हैं, what I do is I sleep over it, right? I sleep over it, and the good part is that I pick on that day, I pick the only sliver of hope which possibly might work the next day. For example, that this is sounding very interesting. नहीं तो कुछ तो अच्छा ही होता है ना. देखो दिन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, एक दो बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक हो जाती हैं जब आपका ऐसा मोमेंट आता है. तो जो एक दो चीज़ें स्लिवर ऑफ होप है ना, वो शायद आपकी कैटेस्ट्रॉफी को सॉल्व करने में हेल्प करेगी कि आपको एक रे ऑफ होप दिख जाती है विद इन दैट कि हाँ यार दिस कैटेस्ट्रॉफिक बट हे देयर वर दोस 3 more conversations, देयर इज अ बिग नो, बट 4-5 लोगों से तो और बात करी थी यार, होप तो है अभी भी, प्रॉब्लम तो अच्छा सॉल्व कर ही रहे हैं ना. let's light up the oil again and maybe it'll be positive and somehow the next day turns out to be good. Then again when that happens, then the next day turns out to be good, and then you continue. That's how I see it. Rather than thinking too strongly of an opinion, sleep over it. The next day will be better. Very interesting. Okay, quickly talking about AI. How are you using AI in your business today? Oh लॉट या फ्रैंकली हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी है. लाइक द एंटायर, जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, हमारी जो फोटोज़ होती है, बाइक है, जैसे बाइक डिलीवरी पार्टनर को दी है, राइट? तो उसके क्या है, ऐप पे ही टेक्स अ वीडियो एंड ही टेक्स 6 pictures ऑफ द बाइक, एक फ्रंट से, एक साइड से, फिर पीछे से. नहीं फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो तो 6 महीने के लिए अपने पास ही रख लेता है ना, तो रोज़ का काम ही नहीं है. तो जब पहली बार वो लेता है तो वो पूरी पिक्चर्स लेता है, तो उसमें एक एक चीज़ की उसको क्वालिटी चेक उसके पास आ जाती है रिपोर्ट. फिर जब भी वो मेंटेनेंस कराने आता है या फिर सबमिट करने आता है, सेम चीज़ वापस करता है. तो एआई से प्रेडिक्ट हो जाता है, एआई से फोटो एनालिसिस करके कि ये 3 चीज़ें ना ब्रोकन है. अच्छा. एंड देन बेसिकली उसका चार्जेस आ जाते हैं, एंड देन ही एक्सेप्ट्स इट कि यस हाँ ये देखो ये पहले पिक्चर थी, अब ये अब है, आप ही ने लिया था वीडियो, चेक कर लो. सो ही नोज हाँ जी इट क्लियर है, राइट? प्लस लोकेशन इंटेलिजेंस, जैसे आज हमें पता है थ्रू डेटा, बिकॉज वी आर एक्चुअली क्विक कॉमर्स इज डिलीवरिंग टू द अर्बन इंडिया. हमें पता है अर्बन इंडिया कहाँ रह रहा है, फूड डिलीवरी कौन कर रहा है, बाइक टैक्सी पे कौन जा रहा है, और ग्रोसरी 10 minute ऑर्डर कौन कर रहा है, जो अर्बन एफ्लुएंट इंडिया है, राइट? तो फ्रैंकली मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पीवीआर को ये नहीं पता होगा अर्बन इंडिया कहाँ रह रहा है, बट हमें पता है. वी कैन टेल देम दैट हे दिस इज द न्यू लोकेशन वेयर यू कैन लॉन्च और रेस्टोरेंट और अ शॉपिंग स्टेशन और अ मैकेनिक बाइक स्टेशन, राइट, विच इज रिपेयर स्टेशन. तो वो डेटा is this a zip service? Somehow I've shared it in advance, but we are coming up with this. Okay. Right? तो हम अपने प्रोसेसेस में भी, जैसे हमने पूरा चैटबॉट लाइव कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हमको कॉल सेंटर से अटेंड करके सॉल्व करनी पड़ती थी. मेरा आज का रेंट कितना लगा, मेरा क्या डिडक्शन हुआ, मैंने कितना कमाया, सब कुछ उसको डाल दिया है कि बाइक में अगर ये वायर, मेरी बाइक में ये इग्निशन इशू आ रहा है, तो उसमें भी हम चैटबॉट बता देता है कि आप ये 2 बार बटन दबाइए और इस तरह से आप इसको ऐसे करिए, बाइक ठीक हो जाएगी. मेजॉरिटी यूज केसेस हैंडल हो जाते हैं बहुत, मतलब वी रिड्यूस्ड क्वाइट ड्रास्टिकली. ओके. फ्रॉम द पीपल पर्सपेक्टिव वी रिड्यूस्ड इट बिकॉज ऑफ दीज एफिशिएंसी व्हिच आर कमिंग थ्रू एआई, राइट? तो कई सारी चीज़ें कर रहे हैं. fleeties.ai बना दिया पूरा SaaS प्लेटफॉर्म ही, विच हैज ट्रिगर्स, लोकेशन ट्रिगर्स, स्पेयर पार्ट ट्रिगर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पूरा का पूरा प्रेडिक्शन हमारा स्पेयर पार्ट का AI से होता है. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स. हर स्पेयर पार्ट की एक लाइफ होती है और हर स्पेयर पार्ट की एक अगर ऑर्डर किया तो डिलीवरी टाइम भी होता है, राइट? तो उनको मैप करके हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि लोएस्ट स्पेयर पार्ट कितना रखना चाहिए हमें हर हब में. वी हैव 20 मैकेनिक शॉप्स, उन सब पे हमने वो ऑप्टिमाइज कर दिया. सो आई थिंक दिस जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस. लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग विद AI. Tell me top 2-3 tools that you use, AI tools, and what use cases do you solve with it? Yeah, so I use GPT a lot now, right? I think entire time I'm chatting and vibing with GPT in terms of what should I do in this thing, where should I go for dinner also, if I'm going for this meeting, is there something that I should be careful about, if I'm traveling, who are the 10 people whom I can still meet who are not on my radar, and somehow I end up meeting some of those people, right? EV businesses कौन से चल रहे हैं वहाँ जाके मिल लेता हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें, I think GPT has become the go-to thing, right? In terms of decision making, in terms of thinking, the entire diet plan I was telling you, right? Everything is built around that.
Then I think what are the other tools that I'm using? I think I'm mostly the teams are using bunch of these Claudes and cursors, and my tech team is using a bunch of it. Okay. Yeah. But I think we are now. I'm thinking more of how to create on top of it. Right? वहाँ पे ज़्यादा दिमाग जा रहा है. Because most of the other operational tools, the teams have given full license कि आपको जो चाहिए लो और उससे सीखो. Right? So that they become more efficient. I think that's what matters more for me. Has AI replaced some jobs in your company? Or, As I said, or people, yeah. As I said, so while we were very gung-ho of putting a lot of people in the call center, that job for sure is being replaced by agentic. What percentage? मतलब अगर पहले 100 agents होते थे, कितना 25. 25 रह गए हैं. हाँ. Oh wow, okay. Yeah. So call centers are definitely being replaced. Big time. What else? I think a lot of content is being getting smarter. So I would say rather than people writing blogs, right, and thinking of ये script लिखना है, you have to be smart at telling prompting what to write and then correct it rather than do that entire thing fully, right? So that I think my legal team is using a lot of AI to basically read the entire 100 page of contract and give the right synopsis. Right. We've already started doing that, right? So I think everywhere we are telling teams that this is the time for you to vibe with it. Otherwise, it's too late. Yeah. Okay, now I want to do a quick rapid fire. Sure. So I read that you're a big movie buff, right? So top movies that every entrepreneur should watch. So frankly, Guru, all-time favorite. That's the only movie that I would have watched 3 times. Otherwise, मैं repeat नहीं देखता. बहुत लोग देखते हैं. हाँ, so I love Guru. मैं तो बहुत repeat देखता. हाँ, बहुत लोग देखते हैं. पता नहीं मेरे को मजा नहीं आता. हालांकि I forget movies also. हाँ, same. That's why you end up watching it. हाँ, मजा तो आता है, but somehow मुझे लगता है देख अंत तो पता है, तो कुछ नया देखते हैं. So that is something that I would recommend. Then I really like The Founder, which is the McDonald's story. Yeah. Loved it. I cry every time that I watch it. Right. For the McDonald brothers. No. I think that transition of this guy initially when he was selling that machine all the time, and then frankly he figured out while he saw that and his vision was bigger than the brothers. I liked that, the unlocking of his journey of the real guy who then acquired McDonald's. Obviously pity for the brothers, that's fine, but I think the creation of the mega McDonald's, I really enjoyed that in that movie. And then I think which else? I like The Pursuit of Happiness also. Yeah, Will Smith's. Yeah, very nice movie. Okay, any habit or ritual that's a non-negotiable for your success? Habit is the ritual, which is the daily rigor of doing the same thing, the same boring repeat. You can't miss it. Right? So the same time in the gym, the same time in the office, the same rigor, the same action has to continue. Very interesting. What's the worst advice that you have received that you actually followed? So someone told me worst advice that I followed, that I adopted. Yeah. ऐसा कुछ नहीं है, मैं कैलकुलेटर सब अच्छा ही करता हूँ. वर्स्ट एडवाइस को पॉजिटिव बना लेता हूँ. चलो, बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड दैट यू अडॉप्टेड. हाँ, सो वन एडवाइस इन अ वे, माय एल्डर सिस्टर, राइट, अब भाई बहन हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 साल का फ़र्क होता है, तो वो एडवाइस ना आप सुनते नहीं हो, आप हमेशा उसमें रहते हो, राइट, भाई बहन वाले में. बट शी पोक्ड मी वंस इन एयरटेल, व्हेन आई वाज इन एयरटेल. मेरे को करीब 4 साल हो गए थे. उसने कहा, यार इतने सारे मैं लोग देख रही हूँ तो हर 1.5-2 साल में इतना जंप लेते हैं, इतनी नौकरियाँ चेंज करते हैं, तू अपना यहीं पे 4 साल बिता दी, क्या कर रहा है ज़िंदगी में? एल्डर सिस्टर. हाँ, एल्डर सिस्टर. एंड शी काइंड ऑफ पोक्ड. मैंने कहा, यार सुनूँ नहीं सुनूँ, क्योंकि you have that always competing behavior with your siblings. But I think that poke was good enough, which also triggered somehow कि यार हाँ shift तो कर लेना चाहिए. And then I started thinking, and obviously one of the trigger was entrepreneurship, but second trigger was this also. Interesting. Achha, since you're a movie buff, one celebrity you want as Zips ambassador? Yeah, I think I would like
either a Dhoni or an SRK. If let's say I would have to pick one of the two, And why is that? because I think I connect with both of them a lot. The kind of life that they have lived and the kind of achievements that they've grabbed, I get inspired with their journeys quite a lot. Fair. If not Zip, which Indian startup you wish you started? The one which I really like, I think I would have loved to, I would have loved if I would have started Zomato. Oh, really? Yeah. What a beautiful Yeah, business. what a beautiful business. Okay, one red flag in an interview that makes you reject the candidate immediately. If the candidate talks slightly nasty things about any company or anything that has happened, somehow I don't really connect. Right? Ki you have to be presenting that in a fashion which is not so demeaning to the other person, because there are circumstances of every company. Yeah. So that's where I somehow don't like that as a yeah. Okay, who's the stricter boss at work? You or Ashi? I think the team is here. बताओ. Oh, अच्छा. Yeah. I am badly known in the company. I don't know why. मैं इतना सब हंस अच्छा रहे इंसान हैं. बोल रहे हैं सब दिल की बात पूछिए हमारे. हाँ. Yeah. I am very passionate about the business, and I think that passion brings a lot of nuances. अच्छा, but on strictness, I am curious. How do you be strict while making sure the morale doesn't drop, while making sure the right message is communicated and the direction is positive from there? Yeah, so it's a very tough balance, frankly. See, the only thing that I see is intent, and 80% intent, 20% execution. If both of those things are going right, and you're putting in the effort that's required, given the feedback, then you're okay. But if I see that you are lacking on the intent, right, or you're lacking an execution in those terms, then beyond a point, it's tough. Maybe I'll give 1 or 2 times, 3 times I would give a signal ki yaar ye, let's work on it, right? But if that doesn't happen beyond a point, then it just does not flow. Makes sense. Okay, work from home or work from office? Always work from office. Yeah? Yeah. Zip has no work from home. Acha. We, in the last 8 years, only COVID, we worked for that time, because somehow I see this as a very important thing when you're creating something new, when you're solving something new, when you're doing something for the first time, which has not happened anywhere else in the world. इस तरह का धंधा हम पहली बार बना रहे हैं ग्लोबली, राइट? कि डिलीवरी पार्टनर को बाइक रेंट पे देना और फिर उसका सब कुछ मैनेज करना ईवी पे, जो कि चेंज हो रहा है. तो उसके लिए आपको डेली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते. और मैं खुद एज अ पर्सन घर पे बैठ के काम कर ही नहीं पाता. कभी बेल बज रही है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी ये. सो यू आर नॉट फोकस्ड. It's good if you are at an evolved state of life, जहाँ पे processes set हैं. You have to possibly mingle around, and the things will be sorted, but not in a category creating opportunity. Okay, in which city do you face the most operational issues? मतलब सबसे ज़्यादा पंगे कौन सी सिटी में होते हैं? अब आप तो इतने जगह आपने डिप्लॉय कर रखा है. सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ होता है? ऐसा नहीं है, सिटी स्पेसिफिक नहीं होता. अच्छा. वो बहुत सारे पीसेस होते हैं किसी भी बिजनेस में. वो सारे बिजनेसेस ही ठीक होने चाहिए, राइट? इट्स फुल साइंस ऑफ ईच पर्सन्स प्रोडक्टिविटी, ईच टाइप. सो जैसे मैंने कहा कि हमने तो पूरे के पूरे बिजनेस को डेटा पॉइंट्स में बांट दिया. हम तो डेटा पॉइंट्स पे बात करते हैं. देयर इज अ परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन, देयर इज अ परसेंटेज ऑफ RFD, देयर इज अ परसेंटेज ऑफ अंडर मेंटेनेंस, देयर इज अ परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एवरी ह्यूमन. ईच ऑफ दिस थिंग्स हैव टू डिलीवर. ओके, सो आई विल रीफ्रेज. यस. सब कौन से सिटी में डिलीवरी पार्टनर सबसे ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते हैं? हमको कहीं नहीं करते, क्योंकि हमारा एंगल डिफरेंट है. हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू मेक मनी, एज सिंपल एज दैट, राइट? एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग एट
a price which is quoted to them. तो यार आपको चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है तो छोड़ के चले जाओ, राइट? ऐसा होता है कि कोई बाइक लेके गायब हो जाता है या फुल टेक बना रखा है. अच्छा. There's no one that who can fool around. There's IoT, there's tracking. There are tons of data points which come to us, which just predicts everything about the bike ओके and the behavior. ओके. Yeah. सबसे ज़्यादा डिलीवरीज कौन से सिटी में हो रहे हैं? Delhi NCR. Delhi NCR is the largest market. लार्जेस्ट मार्केट In फॉर India. क्विक कॉम फूड डिलीवरी है All put together. ऑल पुट टुगेदर. It's the biggest market. एंड because विद इन of- दिल्ली? within Delhi NCR, so Delhi, Gurgaon, Noida, Faridabad, हाँ, Ghaziabad. Delhi is the biggest, followed by Gurgaon, followed by Noida, then Ghaziabad, Faridabad. यू ऑल्सो नो कि विद इन दिल्ली कौन से पॉकेट्स? South Delhi. साउथ दिल्ली. South Delhi is good, right? Dwarka is an area which is decent. So we have 20 hubs, which is our workshops, which is where the business operates. So Delhi has 10 of them. Bangalore is about 6 of them. Mumbai is now about 3-4. Right now Hyderabad also has one. So that is how it is. तो दिल्ली EV में भी सबसे बड़ा है, दिल्ली डिलीवरी में भी सबसे बड़ा Okay. है फॉर ऑल द बिजनेसेस, फॉलोड बाय बैंगलोर, फॉलोड बाय मुंबई, फॉलोड बाय देन हैदराबाद, पुणे, चेन्नई. Interesting. Yeah. Okay. One book that changed your life? The book that changed my life is 2 of them. So one of them is The Fountainhead, and Acha. the second one is Think and Grow Rich. Why The Fountainhead? I think that got a few, I would say, characteristics which I really liked in the main character. He also had a tough life, and then came out of that struggle, which was very relatable. When I read that very early age, I really related with that book. Ayn Rand की जो book है, right? That story of that protagonist was very relatable, right? I think you like what you relate with, right? Yeah, So that was one. And Think and Grow Rich from a perspective, because I think it tweaked a lot of things again towards the direction of entrepreneurship, right? I picked कि this is the process of building, thinking, and possibly becoming. Right. I know that you're a lot into health. हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, right? Then you said कि habit is the ritual. So what does your day look like? So it has evolved over time, right? I think I have always imbibed, or again, one of the things that I would always want to think of, जैसे entrepreneurship, is, let's say, a good, body, a good, healthy, toned body is something that I would always want to seek for. And I think based on the time, जितना टाइम मैं दे पाया अपने लाइफस्टाइल में और अपनी ज़िंदगी में, तो कम ही टाइम दे पाया टिल सर्टेन पॉइंट इन लाइफ. जब नौकरी कर रहे थे, स्टार्टअप बनाने की सोच रहे थे, इतना टाइम नहीं दे पाए, राइट? जब डेल में ज्वाइन किया था, थोड़ा टाइम फ्री था तो जिम चले गए थे, तो बीच बीच में किया. बट नाउ आई थिंक इट हैज़, ओवर द लास्ट 1.5 years, it has picked up a lot for me, because one, now there's a lot of science around it, there's a lot of data around it, and I'm reading and figuring out a lot of data with Ultrahuman, with Whoop, with Apple Watch. You're getting those signals, Right. and now you can gamify a bit of it, right? So I think, and one more thing, which is, I don't know, organically or inorganically it has happened, that now for me a day looks bad if I am not in the gym. Wow. It is somehow wired कि यार अगर मैं जिम में नहीं जा रहा ना तो मज़ा नहीं आ रहा. I'm a little groggy in the day. I'm not feeling up to the mark. I'm not enjoying the day as much. So hence it has now become accustomed कि अगर वहाँ जाएंगे तो फिर एक्शन में और मज़ा आएगा. ठीक है. And hence it has wired up for me, and it and then around it, eating the right things. So I think travel also helped me a lot. So there was a time when I traveled, and when I travel, it's very busy. I'm meeting after meeting after meeting. Traveling for work. Traveling for work, right? So उसमें क्या हुआ? I have already been in days where there could be days where I'm just surviving. Maybe a bar, and a Nutri bar, whatever, and then possibly a little bite in the night, almost just surviving the day. So that totally got me down to zero. कि now let's rebuild. So I went to that portion of life where I almost had nothing, almost fasting days, and I figured out कि अब ये थोड़ा सा डाल रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है. हाँ, correct. अब ये खा रहे हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है.
and then obviously matching it through some data also, what is working for you. And there's, I think, a mental state when you are thinking about it, that everything, and if you map out the reaction to your day with what you're eating, and if you try to connect, there's a connect. 100%. People don't see that. Yeah. But when you start mapping it, so now I know what to eat, what not to eat, how much to eat. तो कैसे करते हो आप? जैसे जैसे टेक अस थ्रू योर डे, राइट? इतने बजे उठे, ये किया, खाना अभी आपने सोच लिया है, तो क्या खाते हो जनरली? या सो फ्रैंकली जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठते ही मतलब आधे घंटे में जिम जब जाता हूँ, आई गेट अप एट 7:35 आफ्टर ड्रॉपिंग माई डॉटर टू स्कूल बस. From 7:30 to 7:38, 7:38 to 7:40 I'm in the gym. Okay. हाँ, तो फिक्स है. तो मैं जिम पहुँच जाता हूँ. Gym is clearly till 9 I'm in the gym, right? And then as soon as I'm out of it, and I'll have a banana before the gym. That's good enough for me to get the energy. And then after the gym, it's very clear that I'll have a breakfast that I like. Very clear, right? With eggs. Which is changing every day. So every day it has to be different. And I have kept it as simple as possible, which is कभी पराठा भी होगा, कभी डोसा भी होगा, कभी चने की टिक्की भी होगी. So everything, कभी sandwich भी होगा, but all things healthy, all things made at home, right? Avocado toast भी होगा, but that's the breakfast that I will have along with my eggs, along with my whey, right? That's how the day starts. Then I'll have a few juices, those cell juices and stuff which are mixed green color के होते हैं, पता नहीं कौन बनाता है, but they're nice, right? So they give a lot of those ingredients. I'll have a fruit bowl in the office at around 11. That's fixed. I'll have my creatine, which will run till 1, along with a black coffee, which will run. So 2 things, 1 black coffee, sipping, one, I keep intermingling between the 2. तो वो चलता रहता है till 1 or 2, till 3 rather. Right, I'll have so वो हो गया हमारा fruit break. Then 3 I have my lunch around 2:45 to 3:15, 15 minutes. I'll have my lunch, which is typically more of pulses and less of carbs, right? Reduced carbs there and salad. That's the lunch. Then towards the evening I'll have eggs again, and I'll have again hardly any carbs, but a little bit of more protein. So I might have another whey or a bit of sprouts, right? That's it. And that's the thing. I also might have a few of these things, since you talked about health, maybe magnesium in the night, and in the morning those multivitamins and omega-3. That's the day. Wow. It's every day. Yeah. Even if you're traveling. Even if I travel, I at least keep the basics. So now I think Rashi was joking that this has now become everywhere. So I was with her in Bangalore, Mumbai last week. This was with me all the time. ये wiring करनी पड़ी, because earlier it was not. Right. But over the last 1 year, since I've picked up a bit on it, and I'm loving that. So I've picked it up. कि भी करना पड़ेगा अगर करना है तो. Yeah. And I was telling you this before we started shooting also, that even at 8:30. You are looking super pumped, right? So is the food the source of that energy, or like where is this energy at so late in the day coming from? It's 10 p.m. Huh? 10 बजा दिए आज. Yeah, I think I don't think so that it is the food, because it has to be very deep core within that whatever you're doing, if you're enjoying, then it is energy, right? So I think I don't spend time into doing anything which I'm not enjoying. Even on a micro level, let's say you enjoy building this business. Correct. But you don't enjoy, let's say, accounting, hypothetically. I don't do it. You don't do it. मैं वो कोई भी काम नहीं करता जो मुझे नहीं पसंद. Very interesting. हाँ, सारा चीज़ जो भी मुझे नहीं पसंद, वो मैं धीरे धीरे and that's also a transition. Obviously पहले ये बहुत tough होता है ये करना. पहले 2-3 साल I could not have outsourced anything, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही आप वो एनल होते हो हर चीज़ करने के लिए. ये मेरी तरीके से मैं ही कर लूँगा, मैं ही बेस्ट हूँ, क्योंकि दूसरे को दूंगा यार वो फिर टाइम लगेगा. But I think it's slowly very important to kind of give away a lot of those things so that you focus on what you like to do. I think which is what I have totally started doing. मैं सिर्फ वही चीज़ें करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो कि obviously business को भी help कर रही है, but मुझे अच्छी लगती हैं, और उससे मैं भी सीख रहा हूँ, तो मज़ा आता है. And that's the real source of energy.
पिक प्रॉब्लम्स. येस, nobody in the business would like those, but मुझे वो सॉल्व करने में मजा आएगा. तो ठीक है, मैं ही वो पकड़ लेता हूँ. Correct. Yeah. And how has entrepreneurship changed your life? Oh, a lot. मतलब, let's talk about it from the perspective कि some dreams that it helped you achieve, how it changed you as a person, how it changed other aspects of your life. A lot of it, frankly. It is a totally, humbling journey. It changes you 360 degree, right? I would have been a very different person 8 years back. And I think... Let's talk about pre and post. What has changed? So I was not so vocal. I was very shy. I was not so able to speak. Maybe like I didn't know what you were planning to ask. मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, right? All of that comes by going into the mud every day and failing there. And then if you try to figure out and then somehow come out of it, then that's an experience, right? And that experience you get in every nuance of the business, right? क्योंकि इंडिया में धंधा बनाना बहुत मुश्किल है, right? और प्रॉफिटेबल धंधा बनाना और भी मुश्किल है, right? तो हमने अभी प्रॉफिटेबल धंधा बनाया तो बहुत प्रॉब्लम है सॉल्व करी है, right? टीम को कैसे बिल्ड करना है. आज भी गलतियाँ होती हैं. आई डोंट से दैट कि भाई हम सब कुछ ही आता है, नहीं. यू स्टिल मेक मिस्टेक्स, बट you now live by your mistakes also, and you live by your I would say good things also that you've done well. But you have to imbibe that कि यार ये कॉल लिया था क्योंकि ये लेना था उस समय, और इसके बिना अब कुछ नहीं हो सकता, वो मोमेंट चेंज नहीं हो सकता, आगे बढ़ना है. That is how I kind of run the business now. So that's being vocal, that's being more confident. What else has changed pre and post? यार आई थिंक आई वाज नॉट अ नेटवर्कर एट ऑल. मेरे को पता ही नहीं था नेटवर्किंग क्या होती है, लोगों से बात कैसे करते हैं, रूम में जाके किसी से हाथ कैसे मिलाते हैं, मेरे को नहीं आता था. आई हैव नाउ, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फाउंडर फ्रेंड्स नाउ. द एंटायर इंडस्ट्री इज समहाउ कनेक्टेड समवेयर और द अदर, राइट? तो वो धीरे धीरे ही बिल्ड हुआ, दैट मसल ऑफ letting your guard down, and be vulnerable in front of people, share some and hear some, help a bit, seek help if required, is something that kind of is the real power of building a relationship, right? So that slowly I've learned with time, right? Again, 5 साल तक I didn't know anyone in the industry. I was just hardcore into doing everything myself, right? Then टीम नहीं बनाने आती थी मुझे, राइट? कि आई वाज थिंकिंग कि सब कुछ मैं ही करूँगा. देन टीम पे जब शुरू करना किया, कैसे लोगों को हायर करना है, कैसे टीम बिल्ड करनी है, किस तरह से सही लोगों को लेके आना है, उसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं. तो आई थिंक स्टार्टअप एज अ जर्नी, फिनेंस को समझने लगा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे से. कुछ नहीं पता था मुझे. आई हैड नो क्लू ऑफ P&L, यूनिट इकोनॉमिक्स, कैक, EBITDA, पैट, कुछ नहीं पता था. टुडे आई हैव चैम्पियनड इट, एटलीस्ट इन माई डोमेन. आई टॉक ओनली अबाउट दैट. तो ये सारी चीज़ें आपको धंधा ही सिखाता है. Any dreams that you had that you feel कि हाँ मतलब वैसे तो पता नहीं था अचीव होगा कि नहीं, but because of being an entrepreneur I have fulfilled these dreams? अभी तो ड्रीम्स बहुत बात. आई थिंक एक एंटरप्रेन्योरशिप का ड्रीम था, वो अभी जी रहा हूँ. Nice. Okay, coming towards the end, right? What's the one thing that you're looking the most forward to? The big bell that you would That's want to on ring the plans. someday. Yeah, definitely we would love to ring it someday. Building for it. Nice. Yeah. I'm sure it will happen. Fingers crossed. Fingers crossed. Touch wood. Yeah. No, but Akash, this has been fantastic. Thank you so much for being so candid. Likewise. And taking out time literally at night to shoot this. No. But बहुत मजे आया. No, sorry to make you wait No, a bit, no, not man. at all. Yeah, but it was a pleasure. Thank you. मजे आए आपको? बहुत मजे आए. बहुत अच्छे सवाल थे तुम्हारे. मजा आया. I'm glad. Good meeting you. Thank you. Cheers, man.